कण कण में तुम हो, हर क्षण में तुम हो, साई दिलों की हर धड़कन में तुम हो। थाम लो हाथों को मेरे, ओ मेरे स्वामी, जीवन के भवसागर के पार तुम हो। Om Shri Sai Ram. Humble offerings at the divine lotus feet of our beloved Swami. As we extend our collective greetings at your lotus feet, Swami, bless us. A beautiful day indeed, to which we walk up, gathering the scent of your love. How fortunate you made us, safeguarding us at each step ahead. A beautiful journey of a week started with you last morning. How blessed we are to be the chosen ones in your list. Your gift of love flowing since 1970s as the tradition for Sai's children. We are overwhelmed to be a part of it. Swami, bless us as we proceed with the second day of your week-long summer course on Indian culture and spirituality. Swami, we extend our welcome to you to today's session to bless us and guide us as we proceed with today's session. With heart filled with excitement and our ears desperate for your golden words and your inspiring thoughts, we welcome you to guide us. With sacred heart and divine grace, we shall commence the session with the holy note of Omkara and Sai Gayatri. Sai Ram. ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। Om Shri Sai Ram. As we move forward today with today's session, I take the honor to introduce to you Swami's messenger for us today, a blessed child of Swami, Brother Dr. Shri Sai Kirtha. The joyous smile and gratitude at the divine feet for having you among us knows no bounds. Dr. Sri Sai Kiratha joined Sri Sathya Sai Higher Secondary School in 1999. He completed his Bachelor Science Honours degree in Chemistry and holds a Master Science in Chemistry in 2006 and a Master of Philosophy in 2008. All of them are completed from Saty's Prashanti Nilayam campus of Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning. Brother Dr. Sri Sai Giritha holds a PhD in clinical biochemistry and worked on early detection of heart disease in Asian Indians study of biomarkers. He has received several awards from divine hands such as Cultural Champion in 2003 and 2005 and Sports and Cultural uh,
and cultural captain in undergraduate and postgraduate classes. He has also enjoyed many blessed moments, talks, and cultural program opportunities in the Divine Presence, including Chennai's Atirudra Mahayagya 2007, Kodaikanal 2007, and Prashanti Vidwan Mahasava, among others. Brother Dr. Sri Sai Giridhar currently serves as resident fellow at Sri Satya Sai Center for Human Values, Prashanti Nilam. Brother, we are blessed to have your presence among us. I heartily welcome you to today's session with a humble Sairam. I extend my warm welcome to all the guests, attendees, observers, organizers, and all other elder and younger brothers and sisters to second day's morning session. With immense joy, I request Brother Dr. Sri Sai Giridhar to address us on today's topic, Upanishads, the way to yogic life, based on Samasars in Vrindavan 1972 from chapter 4 to 6. Brother, over to you. Sairam. सर्वरूपधरं शान्तं सर्वनामधरं शिवं सच्चिदानन्द अद्वैतम् सच्चिदानन्द अद्वैतम् सत्यं शिवं सुन्दरम्. Once when Bhagavan Sri Satya Sai was asked by his devotees, Swami, we are so overwhelmed by your presence that we wish to know who you really are. Bhagavan very spontaneously replied and said, Sarvarupadharam Shantam. All the forms in the entire cosmos are me. I have assumed them. Sarvanamadharam Shivam. Every form is given a name, and hence all the names are mine, and all names are thus auspicious. Shivam. But while I have adorned all the forms in the entire cosmos, and all names are mine, I am not many but only one, Advaitam, one but not two. But my real name and form is Satchitananda. But since it is imperceptible to the mind and the intellect to understand what Satchitananda is, time and again, as a concretization of the prayers of devotees, I manifest a beautiful form, an avatar, that in its very nature is Satyam, truth, Shivam, auspiciousness, Sundaram, beauty itself. Paying our loving pranams and obeisance
at the divine lotus feet of Bhagavan Sri Satya Sai, who is present in every being, in every atom, in every inch of space in the entire cosmos and beyond. My loving Sai Ram and pranams to Bhagavan, who is present here in the form of all the students attending this summer course and all beings in the entire cosmos. A loving Sai Ram and pranams to you. यहाँ से आगे हम इस सेशन को हिंदी में ही करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इससे सुविधा मिले। आज का जो टॉपिक दिया गया है वो है उपनिषद द वे ऑफ योगिक लाइफ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति का जो सार है उस सार को उपनिषद के रूप में हमें दर्शाया गया है। ऋषि मुनि लोग जो कठोर तपस्या करके हजारों साल अपना जीवन को योग के द्वारा बढ़ाते हुए असली मायने में योग का मतलब को जाना उन्होंने, और उस योग की अवस्था में उन्होंने ये पाया कि ये सारे जीवन का जो सार है, भले आप अमेरिका से हो या अफ्रीका से हो, यूरोप से हो, एशिया से हो या भारत से हो, माने जहां पे वो तपस्या कर रहे थे भारतवर्ष वहीं से हो, सभी जीवन का एक ही सार है। उस एक रस एक सार को ही उन्होंने उपनिषद द्वारा दर्शाया है। इसीलिए उपनिषद में जो रास्ता हमें प्राप्त हुआ है, हम सभी को हमारे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्कृति द्वारा ये सार हमारे जीवन कल्याण के लिए ही नहीं बल्कि सारे विश्व के कल्याण के लिए है। यही उपनिषद का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि सारा विश्व का कल्याण हो, सिर्फ व्यक्ति का कल्याण नहीं, सारे विश्व का कल्याण हो। हाँ, लेकिन उपनिषद वे ऑफ योगिक लाइफ माने यहाँ पे वे तो आप सभी जानते ही हैं, तो यहाँ पे 3 शब्द का अर्थ स्पष्ट होने से आपको इस सब्जेक्ट का एक तरह से गहराई से समझ बोल सकते हैं प्रकाशित होगा। कौन से 3 शब्द है ये? एक तो है उपनिषद, दूसरा है वे ऑफ योगिक लाइफ। माने ये योग माने है क्या चीज, योगिक लाइफ जो बताया गया है, योग माने है क्या चीज और लाइफ का मतलब क्या है असली में। तो ये समझने से हमें सुविधा होगी ये उपनिषद का जो सार है, जो कि ना सिर्फ हमारा कल्याण करने के लिए है लेकिन सारे ब्रह्मांड का माने सारे विश्व का कल्याण का ये स्रोत है। इसको समझने में हमें सुविधा होगी। समझने से क्या होगा, जब आपको पता चलेगा कि ये रास्ता जो है राजमार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है, तो इसमें चलने की प्रेरणा आपको मिलती है, हम सबको मिलती है। इसीलिए हमारा उद्देश्य ये होगा कि इन 3 शब्दों को माने उपनिषद, योग और जीवन लाइफ, इसका क्या मतलब है, इसको समझने से भगवान के जो दर्शन उन्होंने दिया है हमें इन 3 चैप्टर्स में, चैप्टर 4, 5 और 6 से, उसके ही आधार पे हम चलेंगे। क्योंकि ऐसा महत्वपूर्ण जो हमें अवसर मिला है यहाँ इस समर कोर्स का भाग बनने में,
समझ लीजिए, आपके जीवन का कल्याण, हमारे देश के कल्याण और सारे विश्व का कल्याण के लिए ये यहाँ पे आपने दरवाजा खोल ही दिया है। फिर से मैं बता रहा हूँ, आपका यहाँ भाग लेने से माने श्री सत्य साई समर कोर्स ऑन इंडियन कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी, भारतीय संस्कृति और आध्यात्म विषय के समर कोर्स में भाग लेने से आपने ऐसा दरवाजा खोला है जिससे आपका कल्याण होगा, भारत का कल्याण होगा और सारे विश्व का कल्याण होगा। इसके लिए आपने कदम बढ़ा दी है और भगवान का ये कहना है, टेक 1 स्टेप टुवर्ड्स मी, आई विल टेक 100 स्टेप्स टुवर्ड्स यू। माने अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे उनकी तरफ, तो वो 100 कदम आपकी तरफ दौड़ते हुए आएंगे। ये है उनकी कृपा। श्री सत्य साई के शब्द को सुनना, उसको समझना और अपने जीवन में उतारना, माने इससे बड़ा परम सौभाग्य का विषय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। ऐसा कहा जाता है, आप सभी ने सुना ही होगा इस योगी के विषय में, क्योंकि यहाँ एक योगिक वे ऑफ लाइफ बताया गया है। तो एक योगी का ही उदाहरण यहाँ लेते हैं, परमहंस योगानंद, जिन्होंने ये पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, उन्होंने लिखा ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। आजकल आप इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, विराट कोहली के हाथ में भी है, स्टीव जॉब्स के हाथ में भी था, वो भी चित्र अभी बहुत प्रसिद्ध हो रहा है हर जगह। माने जितने भी विश्व में सक्सेसफुल लोग हैं उन सारे ने कम से कम एक बार ये पुस्तक जरूर पढ़ा है। कौन सा? ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। और प्रशांति निलयम में भी जब हम सभी लोग छात्र थे, हम सभी छात्र यहाँ पे कम से कम एक बार वो पुस्तक जरूर पढ़ते हैं, उससे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए। क्यों? सिर्फ जो नजर के सामने जो दुनिया दिखती है वो असली में ये दुनिया नहीं है। आगे बहुत कुछ हमें जानना है और प्रकाशित करना है अपने जीवन में। इसका एक इंस्पिरेशन जो है वहां बहुत मौजूद है। इसीलिए वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का पुस्तक जो है जरूर सत्य साई स्टूडेंट यहाँ पे कभी ना कभी अपने जीवन काल में पढ़ते ही हैं। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी का जिस योगी के विषय में है वो है परमहंस योगानंद। आप में से बहुत से लोग इनके नाम और इनके जीवन के बारे में जानते होंगे शायद। हाँ, लेकिन एक ऐसा विषय है इनके जीवन से जुड़ा हुआ जो कि इस प्रसंग से ताल्लुक रखता है। वो विषय ये है कि उन्होंने एक बार, माने परमहंस योगानंदा जी जो वेस्ट बंगाल के थे, एक बार वो गए थे माता आनंदमयी माँ के पास। आनंदमयी माँ को बहुत से लोग सबसे विशेष संत जानते हैं और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि साक्षात भगवती का प्रेम अवतार है आनंदमयी माँ, ऐसा भी सोचते हैं। तो आनंदमयी माँ के पास दर्शन लेने के लिए गए थे, वो भी बंगाल के ही हैं संत आनंदमयी माँ। तो उनका दर्शन लेने के लिए गए थे परमहंस योगानंद। जब परमहंस योगानंद जी गए वहां और उनके बीच में संवाद हो रहा था, तो योगानंद जी ने आनंदमयी माँ से पूछा, माँ, हमने सत्य साई बाबा के विषय में सुना है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि श्री सत्य साई कौन है? तो आनंदमयी माँ बहुत प्रसन्न होते हुए लेकिन थोड़ा गंभीरता ग्रहण करते हुए, माने एक गंभीर अवस्था उन्होंने ग्रहण कर लिया। फिर उन्होंने उस गंभीर अवस्था से कहा, देखो बेटा, अभी मैं जो बोलने वाली हूँ सिर्फ एक ही बार बोलूंगी, फिर से दोहराऊंगी नहीं, इसीलिए ध्यान से सुनना। ऐसा अवतार न इस प्रकार से, माने इतने शक्तियों के साथ, इतने विभूतियों के साथ, इतने विशाल उद्देश्य के साथ ऐसा अवतार इस धरती के ऊपर न पहले आए हैं, न 5000 साल तक आगे आएंगे। ये उनका वचन था। माने श्री सत्य साई की तरह
पूर्ण अवतार माने ऐसा उद्देश्य, ऐसा विशाल कार्य को समेटते हुए इसको सिद्ध करने वाले इस प्रकार के अवतार जो सहज रूप से हमें सब प्राप्त हुए हैं, ऐसे अवतार जो है ना पहले इस धरती पे आए हैं न और 5000 साल तक आएंगे कम से कम। ये उनका कथन था, उनका दिव्य वचन था ये। माने सोच के देखिए हमारा सौभाग्य कैसा है। हाँ, लेकिन इसका मतलब है जो श्री राम बन के आए, जो श्री कृष्ण बन के आए, वही तत्व अवतार लिया है शिरडी साई और सत्य साई के रूप में। इसमें कोई संदेह है ही नहीं। हाँ, लेकिन जिस विशालता के साथ, विशाल उद्देश्य के साथ अभी आए हैं भगवान, जैसे ये बताया जाता है कि श्री राम के अवतार के समय कुछ 10-15 लोगों को पता था कि उनके अवतार का रहस्य क्या था। माने वो अवतारी पुरुष है, भगवान के स्वयं स्वरूप है, कुछ 10-15 लोगों को पता था। कुछ लोग तो बोलते सिर्फ 9 लोगों को सही मायने में पता था। और आगे जाके जब कृष्ण अवतार हुआ, गिन चुन के 100 लोगों को पता था क्या कि ये अवतार परब्रह्म का है। ये विषय कुछ गिन चुन के 100-200 लोगों को इस विषय का परिचय है। हाँ, लेकिन जब यही भगवान श्री सत्य साई अभी बन के गए, सोच के देखिए कितने हजारों सैकड़ों लोगों को भगवत अवतार, भगवान अवतार का माने ये विशेष सूचना है उनके हृदय में। उनको पता है कि भगवान का स्वरूप है और वो मानते हैं, पूजा भी करते हैं और उनका जो बताया हुआ मार्ग है उसमें भी वो चलते हैं। कितने हजारों लोग, माने इस हिसाब से भगवान का अवतार इस प्रकार श्री सत्य साई के रूप में हुआ है। ऐसा अवतार न पहले हुआ, न 5000 तक आगे साल तक होगा भी। ये माता आनंदमयी माँ का कहना था। और अभी ये देखिए कि आपका परम सौभाग्य है कि आप श्री सत्य साई से जुड़े हैं। माने जब अवतार खुद यहाँ प्रकट हुए हैं तो उनके साथ जुड़ना माने कितना परम सौभाग्य का विषय। हाँ, लेकिन बहुत से युवक के मन में ये भी आया होगा कि किसी ने ऐसा भी हो सकता है कि सत्य साई से जुड़े लेकिन 2011 के बाद, तो उनको ऐसा भी लग सकता है कि अरे मैं थोड़ा लेट हो गई, ये क्या हुआ। ये भी मन में विचार आ ही सकता है, बहुत सहज है, सरल है विचार। हाँ, तो इस विषय में हम आपको बताना चाहते हैं कि श्री सत्य साई का अवतार का सही मायने में तात्पर्य क्या है। ये हमें समझाया एक और योगी ने, जो कि केदारनाथ के मंदिर के पीछे वो रहते थे। हम सभी लोग यहाँ के छात्र कभी न कभी हिमालय की तरफ तो जाते हैं, हमारी इच्छा बना रहता है। तो कुछ लोग हम में से अपना प्लान बना के गए थे हिमालय की ओर, बद्रीनाथ और केदारनाथ, जहाँ पे आपको हमारे सही मायने में जो भारतीय संस्कृति है सुरक्षित रूप से आपको वहां पे प्रकट होगा। हाँ, कहाँ? वहां के गांव-गांव में। ऐसा है कि हम यहाँ भी हमारे ही क्षेत्र में अगर गांव में जाके देखें तो आपको सही मायने में भारतीय संस्कृति क्या है वहीं पे आपको झलकेगा। इसीलिए स्वामी हमेशा कहते हैं कि गांव में जाके देखो और वहां जागृति बढ़ाओ। क्यों? वहां पहले से ही जागे हुए हैं, लेकिन उनका जो कष्ट है अपने जीवन में उस वजह से थोड़ा सा दबे हुए। उस कष्ट को निकालो और जो जो जागृति उनमें है उसको और संवारो और बढ़ाओ। ये शहर वालों से बहुत आगे निकल जाएंगे गांव वाले। क्यों? भारतीय संस्कृति का जो शक्ति है उनके भीतर वो बहुत प्रकट है, बहुत ही बलवान है उनके भीतर, उनके हृदय में। इसीलिए गांधी जी ने भी कहा था पहले कि भारत जो है, इंडिया लिव्स इन हर विलेजेस। माने भारत असली मायने में उनके गांव में बसा हुआ है, अपने गांव में बसा हुआ है। तो वापस जाते हैं वहां हिमालय में, जहां पे बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा हो रही थी और केदारनाथ गए, दर्शन हुए भोले बाबा की। फिर वहां से गए मंदिर के पीछे। मंदिर के पीछे गए तो कैसे कि किसी ने बताया कि आदि शंकराचार्य जो कि भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के सबसे महान योगदान देने वाले,
आदि शंकराचार्य, जगत गुरु आदि शंकराचार्य के समाधि माने उनका ऐसा कहा जाता है कि वो आखिर में सिर्फ 32 इयर्स के थे। सोच के देखिए, यूथ माने भारत के यूथ में कितना क्षमता है। आदि शंकराचार्य उनका पूरा जीवन काल जो है सिर्फ यूथ तक ही था, 32 इयर्स में उनका कंक्लूड हो गया पूरा। और उनका इम्पैक्ट जो था 32 इयर्स में अभी तक हम देख रहे हैं, 1000 साल के ऊपर, अभी 1500 साल, कोई कोई बोलते हैं उससे ज्यादा, लेकिन जितना भी हो 1000 साल के ऊपर हो गया है। और उनका जो जीवन का प्रभाव है अभी तक हमारे सारे जीवनों में प्रकाशित है, ऐसा है उनका प्रभाव। तो आदि शंकराचार्य जी के समाधि माने वो ऐसा कहा जाता है कि वो केदारनाथ मंदिर दर्शन करते हुए आगे निकल गए और उनको उसके बाद किसी ने देखा नहीं, इसीलिए उनका उनका जो समाधि है उसके चिन्ह स्वरूप एक समाधि बनाया गया है केदारनाथ मंदिर के पीछे। तो हम उस तरफ जा रहे थे कि हमारा नजर पड़ा कहाँ, एक लंगर जो हो रहा था। क्यों? बहुत प्राकृतिक है। इतना सब चढ़ाई वढ़ाई करने के बाद, दर्शन के लिए लाइन में खड़े होने के बाद, दर्शन होने के बाद प्रसाद तो मिलना है, भूख भी लगती है, तो ध्यान गया वहां कहाँ, एक लंगन चल रहा था। तो हम दर्शन करके आए समाधि के, चूहा राम जो था पेट में बहुत दौड़ रहा था, तो हम सब लोग गए वहां लंगर के पास। लंगर इतना स्वादिष्ट था, गरम गरम खिचड़ी और उन्होंने अचार वगैरह बहुत प्रेम से उन्होंने खिलाया, सर्व किया हम सबको। फिर हम में से किसी को जुकाम था तो वो वहां से मेडिसिन भी लेके आए। तो हम सोच रहे थे कि स्वामी के ही तरह यहाँ पे कौन है जो कि नित्य अन्न सेवा और नित्य मेडिकल कैंप वहां पे उन्होंने रखा है। तो ये महात्मा कौन है? यहाँ तक कि जब हमने प्रसाद ग्रहण किया और वो हो गया तो समाप्त हुआ, तो हाथ दोनों के धोने के लिए उन्होंने गर्म पानी दी। ये देखिए, ये है हमारी भारतीय संस्कृति। स्वामी कहते हैं संस्कृति, कल्चर माने कंसर्न फॉर अदर्स, ये स्वामी का डेफिनेशन है। कल्चर इज कंसर्न फॉर अदर्स। तो वहां गए थे, इतना ठंड है ना, तो हाथ धोने के लिए उन्होंने गर्म पानी दी, और वो ज्यादा गर्म भी नहीं, थोड़ा हल्का सा गर्म, ताकि हम थोड़ा कंफर्टेबल रहे ऐसा। तो हमें ये विचार आया कि हमारी संस्कृति के हिसाब से, मानव मूल्य के हिसाब से हमें कृतज्ञता व्यक्त करना है। तो हमने जो सर्व कर रहे थे उनसे पूछा, ये कौन है जो ये नारायण सेवा यहाँ पे केदारनाथ की ऊंचाई पे कर रहे हैं और यहाँ पे मेडिकल सेवा भी कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये एक महात्मा है, इनको केदार बाबा बुलाया जाता है और ये यहीं पे रहते हैं। तो हम वहां गए उनसे मिलने। उनके सामने शिरडी बाबा के जैसे एक धूनी था, जो नाथ परंपरा के जो संस्कृति है उस हिसाब से एक धूनी था। फिर उनका आंख बड़े बड़े लाल थे और गुमराह माने जटाजूट के साथ वहां बैठे थे। और जैसे ही लोग आए और हमने अपना कृतज्ञता उनको व्यक्त किया, कोई छात्र ने वहां पे उनसे ये प्रश्न पूछा, इस महान योगी से ये प्रश्न पूछा, महाराज आप कृपया हमें बताएं कि हमें साधना किस प्रकार करना चाहिए। एक वहां पे यात्री, उन्होंने ये पूछा था उनसे। तो उनका जवाब ये था, देखो बेटा, आप आ रहे हो श्री सत्य साई बाबा जी के क्षेत्र से। भगवान श्री सत्य साई ने जो आपको मार्गदर्शन दिया है बस वो करना, उससे ज्यादा और कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। ये उनका वचन था। भगवान श्री सत्य साई ने जो मार्गदर्शन आपको दिया है वो करना, उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, वही आपका कल्याण का रास्ता है। ये उस महान योगी जो केदारनाथ में बसे थे उनका कहना था। फिर ये भगवान के नाम सुन के वहां पे दूसरे एक यात्री थे जिनके आंख में आंसू आ गया, क्योंकि स्वामी का माने महासमाधि जो था 2011 में वो हो गया था, तो वो स्वामी को मिस कर रहे थे। तो उन्होंने ये इस भाव अनुसार उनके आंख में आंसू बहने लगा। तो उनके आंख में आंसू देख के ये महात्मा फिर से गंभीर हो गए और उनको देखते हुए कहा, अरे मूर्ख, क्या समझता है? माने बिल्कुल शिरडी बाबा के स्टाइल में थे वो। अरे मूर्ख, क्या समझता है तू? सोचता है कि अवतार चले गए, इतना ही है तुम्हारा समझ?
अवतार कभी मरते नहीं हैं, इतना जान लो। ये बहुत गंभीर रूप से उस योगी ने कहा, अवतार कभी मरते नहीं है। असली मायने में अवतार जो है उनके वचन है, उनके दिव्य शब्द ही अवतार है। और एक बार जब परब्रह्म एक मानव शरीर धारण करके आते हैं और एक सतगुरु, एक जगत गुरु के रूप में अपने मुख से, अपने श्री मुख मंडल से जो शब्द निकालते हैं, वो शब्द ही ब्रह्म है, वही सतगुरु है, वही अवतार है। और उस शब्द के अनुसार जो चलता है उसका कल्याण का रास्ता जो है सिद्ध है। ये सोच लीजिए कि वो योगी ने हमने उस दिन जगाया हम सबको, हमारे भीतर में उन्होंने ये जागृति लेके आए। क्या जागृति लेके आए? ये जागृति लेके आए कि भगवान के असली स्वरूप जो है उनके टीचिंग्स है, उनके वर्ड्स है, भगवान के शब्द ही भगवान है। माने अभी हम इस श्री सत्य साई समर कोश में उनके ही वचन जो है उसको सुन के, उसको पढ़ के अपने जीवन में उतार रहे हैं। सोच के देखिए, यही भगवान का दर्शन, स्पर्शन और संभाषण है। और यही असली मायने में उपनिषद भी है। उपनिषद का मतलब क्या है? उप माने पास, उप माने संस्कृत में पास। किसके पास? आत्म तत्व, भगवत तत्व के पास। नी माने नीचे बैठना, शद माने स्थिर होना। ये देखिए तीन विषय है यहाँ पे। उप माने पास, नी माने नीचे बैठना, शद माने स्थिर बैठना। सिर्फ नीचे बैठना नहीं, स्थिर बैठना। तीन विषय यहाँ पे आ गया है। इसका क्या मतलब है? उपनिषद, उप माने पास, किसके पास? भगवत तत्व के पास। तो आप पूछेंगे, अरे भाई मेरे तो शरीर दिखता है, इसमें भगवत तत्व कहाँ है? तो हमारा कहना है, गहराई से देखिए, करीबी से देखिए, अपने ही शरीर को देखिए कि इसमें कितने सारे सेल्स हैं। हर एक कण कण में यहाँ पे क्या हो रहा है अपने शरीर में, ध्यान दीजिए। हर एक सेल जो है शरीर में क्या कर रहा है? वो अपना काम कर रहा है। उसमें रेस्पिरेशन भी होता है, ट्रांजैक्शन भी होता है खाद्य पदार्थ का। इस प्रकार कंटिन्यू उसमें बहुत सारा काम चल रहा है सेल को अपने मेंटेनेंस के लिए, ताकि वो अपने हिसाब से अपने आप को मेंटेन करें और अपने मेंटेनेंस द्वारा वो जिस शरीर के जो पुर्जे में मौजूद है उस पुर्जे का काम सही ढंग से हो। वो पुर्जे अभी क्या, हार्ट हो सकता है, लंग हो सकता है, किडनी हो सकता है, लिवर हो सकता है। ये सारे सारे दिखते हैं अलग अलग, लेकिन अपना काम जो है बखूबी निभाते हैं। अभी आप ध्यान से देखिए, सावधानी के साथ, और इस परख को अपने भीतर लेके आइए कि क्या आप अपने हार्ट को चलाते हैं? क्या आप अपने लिवर को चलाते हैं? क्या आप अपने किडनी और लंग्स को आप चलाते हैं? वो मसल का जो फंक्शन है पूरा, क्या आप जानते भी हैं? अगर आप बायोलॉजिस्ट हो, इस विषय में आपने साइंटिफिकली माने इंफॉर्मेशन ग्रहण किया हो, फिर भी आपको चलाना आता है उसको कैसे? और चलाते हैं क्या आप डे टू डे बेसिस में? तो ऐसी क्या शक्ति है जो कि आपके भीतर जितने भी पुर्जे हैं, माने शरीर के भीतर जितने भी पुर्जे हैं, वो सबको सिस्टमैटिकली वो चलाता जाता है। हम करते तो क्या करते हैं? इसको बिगाड़ने के लिए करते हैं। माने कुछ गलत हमने सेवन कर लिया हो या फिर गलत लाइफस्टाइल हमारा हो गया तो इसको बिगाड़ने में रहते हैं। लेकिन इसके भीतर ऐसा मैकेनिज्म है कि थोड़ा सा इसको समय दे दो, खुद अपने आप को संवारता है, संभालता है। माने ये सब कौन कर रहा है भीतर बैठ के? एक एक सेल के भीतर बैठ के कौन ऐसा इंटेलिजेंस है जो कि वो समझता है कि फॉरेन वस्तु क्या है और प्राकृतिक वस्तु इस शरीर के लिए क्या है, और हार्ट कैसे फंक्शन हो, लंग कैसे फंक्शन हो, किडनीज कैसे फंक्शन हो। अगर इनमें से कोई भी अगर फेल हो जाए, ब्रेन कैसे फंक्शन हो, इनमें से कोई भी फेल हो जाए, क्या आप जीवित रह सकते हैं सुरक्षा के साथ? हाँ, लेकिन ये सब चल रहा है तो कैसे चल रहा है? कौन सा वो इंटेलिजेंस है? साइंटिस्ट भी क्या है, इसको एनालाइज करके बता सकते कि ये ऐसा ऐसा काम करता है क्या, लेकिन वो साइंटिस्ट अपने हार्ट को और लंग को चलाता है, अपने किडनी को खुद चलाता है?
नहीं, कोई नहीं चला सकता। ये अपने आप जो चलता है, अपने आप ही नहीं चलता है, इसके भीतर एक रहस्य है, माने एक शक्ति है, एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। उसी कॉस्मिक इंटेलिजेंस को बताया गया है भगवान, भगवती, शक्ति, कोई भी नाम आप ले लीजिए, या फिर आत्म या ब्रह्म। ये सारा नाम जो है प्राकृतिक रूप से, शारीरिक रूप से हमारे भीतर जो काम करता है। हाँ, कुछ कुछ लोग ऐसा बोल सकते नहीं, मैं ही तो परिश्रम करती हूँ और जो परिश्रम का फल है वो मुझे मिलता है खाने के रूप में, उस खाने से यहाँ शरीर को एनर्जी मिलता है। हाँ, लेकिन यहाँ भी आप विचार करके देखिए बहुत ही साइंटिफिक ढंग से, ये खाना माने क्या है और एनर्जी कहाँ से आया? तो सोलार है, सन का जो एनर्जी है वो कैप्चर हुआ प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, फिर प्लांट्स में जो एनर्जी कैप्चर हुआ वो माने खाद्य पदार्थ में ट्रांसफॉर्म हुआ, और खाद्य पदार्थ में ट्रांसफॉर्म हुआ तो आपके समक्ष माने आपके थाली के ऊपर आ गया, और आपके थाली के ऊपर आया तो आप उसको ग्रहण करते हैं, फिर शक्ति मिलती है काम करने के लिए। हाँ, लेकिन सन को प्रज्वलित करना माने सूर्य को प्रज्वलित करना क्या हम सब ने किया? और पेड़ पौधे जो है वो स्वयं जो सूर्य का प्रकाश है वो ग्रहण करके उसको माने शक्ति के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में कैप्चर करके रखते हैं। क्या हमने उनको सिखाया क्या करना है, कैसा करना है? और जब थाली के सामने आ गया और हम उसको सेवन करते हैं, तब भी ये ध्यान से देखिए, वो जब हम सेवन करते हैं तो उसका जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, और शक्ति जो हमारे शरीर में समा जाता है, वो कार्य हम करते हैं क्या? तो माने अपने आप हो रहा है ये सब, अपने आप, माने कोई इंटेलिजेंस ना हो तो ये कैसा होगा? उस डिवाइन इंटेलिजेंस, कॉस्मिक इंटेलिजेंस को कहते हैं भगवान। ये देखिए भगवान कैसे मौजूद है हमारे भीतर और हमारे आजू बाजू में। हाँ, उसी भगवत तत्व को पहचानने के लिए उसके पास जाना माने उपनिषद में पास जाना हो गया। अभी देखिए सिर्फ शरीर में नहीं है, हमारे मन के भीतर जो शक्ति है, बल है, उसको भी बताया गया है क्या? भगवत तत्व, उसके पास जाने माने उप। असलियत में जो है हमारे भीतर जो सोया हुआ जागृति है, सोया हुआ जागृति है, उसको जागृत करना, उसको जगाना माने वही है उपनिषद का सार। हमारे भीतर जो भगवत तत्व है उसको सोया हुआ है, सोया हुआ माने क्या? अपना काम बखूबी निभा रहा है, लेकिन उसका ज्ञान हमें है क्या? भगवान हमारे पास हमेशा मौजूद है, ये हमारे अनुभव में हमेशा है क्या? हाँ, लेकिन इस ज्ञान को जागृत करना, हमें जगाना, यही है उपनिषद का रहस्य माने उसका उद्देश्य। और यही उद्देश्य को स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, माने अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। उन्होंने कहा माने क्या? भीतर में जो जागृति हमें लेके जाना, ये जागृति किस चीज का जागृति है? ये देखिए जो योग बताया गया, योग माने जो योग में है उसको योगी नाम दिया गया है। भगवत गीता में इस योगी का वर्णन है, आप जाके इसका होमवर्क करेंगे तो एक श्लोक है, या निशा सर्व भूतानाम, जो सेकेंड चैप्टर भगवत गीता में आता है। ये आप गूगल करके देखिए जरूर और इसका अर्थ और गहराई से समझिए। इसका जो एक सारांश है हम आपको यहाँ बताएंगे। या निशा सर्वभूतानाम में ये डेफिनेशन दिया गया कि ये योगी असली में कौन है, किसको योगी बताया गया है? तो ये बताया गया इस श्लोक में कि जो व्यक्ति, सभी लोग सोए हुए हैं तो वो जगे हैं, माने वो जागृत है। जब सभी लोग सोए हुए हैं तो वो जागृत है, जब सभी लोग जगे हुए हैं तो वो सो रहे हैं, माने उस विषय में वो सो रहे हैं। ये बताएगा ऐसा जो व्यक्ति है वही योगी है। मैं फिर से दोहराता हूं, योगी कौन है? जब सभी लोग सोए हुए हैं वो जागृत है, और जब सब लोग जगे हुए हैं वो सो रहे हैं। ये डेफिनेशन भगवान कृष्ण ने दिया है। देखिए, तो इस विषय का चर्चा जो है जेल में हो रहा था, जेल में इस विषय का चर्चा हो रहा था। कौन से जेल में? जब भारतीय जो फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था,
है ना, स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था, तब महात्मा गांधी और बाकी जो सान्य गुरुजी और विनोबा भावे आचार्य वगैरह सभी लोग बैठे थे जेल में, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, और वहां पे चर्चा देखिए किसका हो रहा है, जेल में बैठ के भगवत गीता का हो रहा था चर्चा। और भगवत गीता चर्चा में ये जो विषय था, इस विषय का माने प्रकाशित हो रहा था वहां, किसी ने पढ़ा, सान्य गुरु जी ने पढ़ा और महात्मा गांधी सुन रहे थे, तो बोले फिर से दोहराओ, इसका क्या मतलब निकलता है। माने योगी वो इसको कहा जाता है, सब लोग जब सो रहे हैं वो जगे हुए हैं, और सभी लोग जब जगे हुए हैं वो सो रहे हैं। तो फिर गांधी जी ने हंसी मजाक में उन्होंने कहा, अच्छा तो योगी माने चोर है, चोर ही योगी है। क्यों? क्यों चोर क्या करता है, जब सभी लोग सो रहे हैं तो उसका काम चालू है तो जगा रहता है, और सभी लोग जब जागृत है, वो पूरा रात उसने परिश्रम किया तो वो सुबह को सोता है ना। तो योगी का मतलब डेफिनेशन भगवान कृष्ण ने चोर को योगी बताया यहाँ। तो ये कहने से सभी लोग बहुत बहुत हंसे, और ये हंसी मजाक होने के बाद फिर इसका असली मतलब जो है वो प्रकाशित हुआ था गांधी जी द्वारा। तो इसका असली मतलब क्या है, योगी को बताया गया क्या, सभी लोग जब सो रहे हैं वो जागे हुए हैं, और सभी लोग जो जगे हुए हैं वो सो रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब सभी लोग सोए हुए हैं वो जागृत है, माने जिस तत्व को, जिस शक्ति को, जिस अपने असली अस्तित्व के विषय में सभी लोग अज्ञान स्वरूप, अज्ञान माने जानते नहीं हैं, अपने आप को, अपने असली स्वरूप को जानते नहीं है, माने उस विषय में सोए हुए हैं। तो योगी कौन है, इस विषय में माने अपने असली जो शक्ति है, अपना आत्मबल है, आत्म का परिचय है, आत्मज्ञान है, उस आत्मज्ञान के विषय में योगी जगा हुआ है, बाकी सभी लोग सो रहे हैं। हाँ, बाकी सब लोग जिस विषय में जागृत है, माने इस दुनिया में जो सुख चैन के पीछे लोग भागते हैं ना, सोचते हैं कि जाके क्या करना है, हर रोज जो गहरी निद्रा होती है बहुत आनंदमय होता है। आज भी देखिए बहुत लोगों को मुश्किल हुआ होगा, क्यों, सुबह सुबह उठना है, इतना अच्छा आनंदमय निद्रा हुई, यहाँ से उठ के ये उपनिषद के बारे में सुनने के लिए कौन आएगा भाई, बहुत मुश्किल हो सकती है ये सब, है ना विषय। हाँ, लेकिन यहाँ पे देखिए, तो हम जागते क्यों हैं, नॉर्मली मनुष्य जागता है सुख और चैन ढूंढने के लिए, कहाँ, इस दुनिया में। हाँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति है क्या जिसको सही मायने में अखंड स्वरूप है, अखंड माने अनब्रोकन, कभी टूटता नहीं, अखंड स्वरूप से आनंद सुख की प्राप्ति इस दुनिया से मिली हो, ऐसा कोई एक भी व्यक्ति है? यहाँ तक कि जो अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल के ओनर, फोर्ड मोटर्स के, फोर्ड कार तो आप जानते होंगे, फोर्ड मोटर्स के जो ओनर फाउंडर है, हेड हेनरी फोर्ड, वो कहते हैं, माने उनके पास एक समय में वो अमेरिका के रिचेस्ट में से गिने गए थे और सबसे माने धनवान व्यक्ति। तो ऐसे संभावना में उनका ये कथन था क्या, कि वो कहते थे कि जब मैं अपने दरवाजे के, अपने जो रूम है, उनका बेडरूम है, उस बेडरूम के खिड़की से जब मैं झांक के देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है एक आदमी जो कि एक स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठा है, और उसके हाथ में 2 बन है, वो खाता है, वो पाचन भी हो जाता है, और उसके बाद गहरी निद्रा में आनंद के साथ लेटा हुआ है। मैं उसको देख के मैं सोचता हूँ, मैंने किया तो क्या किया अपने जीवन के साथ। क्यों? क्योंकि उसका जो सुख है, उसको जो मिलता है, खाने को पचाने की शक्ति जो उसके पास है, और आनंद जो ले रहा है खाने का, और सोने का जो उसको सुविधा मिल रही है, ये दोनों सुविधा से वंचित हूं मैं। कौन? हेनरी फोर्ड बोल रहे हैं। ये देखिए, माने इतने सरल सुख का जो अनुभव होता है, माने खाने का, सोने का, ये भी उनको प्राप्त नहीं है। कौन? दुनिया के सबसे रिचेस्ट में से तब गिने गए थे एक समय पे, हेनरी फोर्ड। ऐसा था उनका माहौल। माने मनुष्य जागृत होता है किस लिए?
सुख और आनंद की प्राप्ति को ढूंढने के लिए कहा इस दुनिया में, लेकिन किसी को मिला क्या? यह माने जो मनुष्य सोचता है मैं जगा हुआ हूँ किस चीज के लिए? आनंद सुख चैन की प्राप्ति के लिए काम करता रहता है, ढूंढता रहता है, वो असल में क्या है? सोया हुआ है। क्यों सोया हुआ है? इसलिए सोया हुआ है क्योंकि उसको वो असली आनंद का जो स्रोत है वो जानता नहीं कहाँ है। जो माने ऐसा उसका माहौल हो गया कि आंख के ऊपर पट्टी बांध के ढूंढ रहा है जिस चीज को वो ढूंढ रहा है इस दुनिया में। क्या उसको मिलेगा आंख में पट्टी बांध के? हाँ, लेकिन जो योगी है वो इस चीज को भलीभांति परखते हैं, परखते ही नहीं खुद अपने अनुभव में जानते हैं। क्या जानते हैं? कि आनंद का जो स्रोत है आप खुद हो, आपके भीतर से आनंद आता है ना कि बाहर से। इस विषय का पूर्ण ज्ञान है। इसीलिए जो जहां पे मनुष्य सोचता है कि वो जगा हुआ है उस विषय में एक योगी सो रहे हैं, माने उनको ये निद्रा के इक्वल है, वो माने सोए हुए अवस्था के इक्वल है, माने आंख में पट्टी बांध के चलने की इक्वल है। इसीलिए कहा गया है योगी माने जो अपने आत्म स्वरूप आनंद का जो असली स्रोत है अपने भीतर इस विषय में जगा हुआ है, उसी को योगी कहते हैं। उस आनंद का जो स्रोत हमारे भीतर जो बहता है, जो व्यापक स्वरूप है उसका। एक और विषय देखिए, जगने का विषय। किस विषय पे हमें जगना है? हम अपने आप को बहुत सीमित सोचते हैं, सीमित माने ये शरीर मानते हैं ना अपने आप को। हाँ, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? ये शरीर जो है सीमित है, माने इस सारे ब्रह्मांड के तुलना में एक अनुमात्र भी नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, सीमित है। अगर हम अपने आप को ये समझते हुए जाएंगे, सारे जो हमारे जीवन काल में जितना मुश्किलें हमें सामना करते हैं ना, सब बड़ा बड़ा दिखाई देगा हमें। क्यों? क्योंकि हम बहुत सीमित है, इतने छोटे हैं, तो मुश्किल सारे इतने बड़े हैं। हाँ, लेकिन अगर हम हमारे खुद के विषय में, जैसे स्वामी कहते हैं यू आर नॉट वन बट थ्री, द वन यू थिंक यू आर, जो आप अपने आप को सोचते हैं नॉर्मली, दैट इज द बॉडी। द वन दैट अदर्स थिंक यू आर, बाकी सब लोग आपको किस प्रकार जानते हैं? दैट इज योर, आपके पर्सनालिटी से जानते हैं। सिर्फ शरीर, शरीर आपका छिन्न हो गया, लेकिन वो हाँ ये ऐसा ऐसा बर्ताव करते हैं, ऐसा ऐसा उनका बात करने का ढंग है, ऐसा ऐसा उनका माने रिएक्शंस होता है, रेस्पॉन्स होता है, इस विषय से आपको पहचानते हैं लोग। माने व्हाट अदर्स थिंक यू आर, वो है आपका माइंड माने पर्सनालिटी। एंड द वन हु यू रियली आर, माने असलियत में आप कौन हो? आप वही शक्ति हो जो कि शरीर में जितने पुर्जे हैं ना उन सबको अपने आप चलाने वाली शक्ति, और कोई नहीं, आप ही हो। लेकिन आप जानते हो क्या इस विषय में? इसीलिए बताया गया सोए हुए हो, जागना है इस विषय में। इसीलिए कठोपनिषद कहता है, जहां से स्वामी विवेकानंद ने यह शब्द लिया, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधन। माने यहाँ पे उत्तिष्ठ जागृत माने जगो, किस विषय में? अपने शक्ति के विषय में जगो। असलियत में तुम्हारा क्या शक्ति है? सारा ब्रह्मांड जिसमें बसा है उस ब्रह्म तत्व आत्म तत्व ही आपका असली परिचय है। यही कहना है उपनिषद का। दिस इज योर ट्रू पोटेंशियल। योर पोटेंशियल इज द एंटायर क्रिएशन, ऑल ऑफ कॉस्मोस, जिसके भीतर समाया हुआ है, जिसके भीतर ब्रह्म सूत्र में कहा गया है जन्मादस्याद् यतः, माने जन्मादि यस्य, यतः माने जहां पे जन्म मरण और जन्म मरण के बीच में जितना भी चक्कर चलता है, माने दुनिया का चक्कर, जीवन का चक्कर चलता है, ये सारा सृष्टि जो है, सृष्टि का ही जन्म मरण के बीच में जो चक्कर चलता है, वो सारे जन्मादि अस्य यतः, माने जहां पे ये समा हुआ है वो है ब्रह्म। ये बताए ब्रह्म माने भगवान, भगवत तत्व। और भगवान क्या कहते हैं? यू एंड आई आर वन, माने आप ही वो भगवान हो। लेकिन वो शरीर भगवान हो सकता है क्या? क्यों? सीमित है, इतना छोटा है, इतना विशाल सृष्टि इसके भीतर कैसे, है ना? फिर मन भगवान हो सकता है क्या? मन में कैसे विचार आते हैं? मैं, मेरा, मुझे ऐसा हुआ, मुझे किसी ने ऐसा कहा, यही विचार चलता रहता है। या फिर मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, यही विचार चलता रहता है मन में। तो ये सीमित जो मन है ये ब्रह्म हो सकता है क्या? इसीलिए
हमारा जो उपनिषद है हमें ये सिखाता है, पहले शुरू करो नेति के साथ। नेति माने न इति, ये मैं हूं नहीं, ये मैं हूं नहीं। यहाँ के जो 1972 समर शवर्स में स्वामी ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए कहा है इस विषय में कि ऊपर माने किसके पास हमें जाना है। पास जाना माने जागृति लेके आना हमारे भीतर। किस विषय का जागृति, ये देखिए बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल, माने ऐसा एग्जाम्पल सिर्फ भगवान दे सकते हैं। इतना सुमधुर प्रेममय उन्होंने उदाहरण दिया है इस विषय को समझने के लिए। ये नेति नेति है क्या चीज, माने समझना हमारे असली शक्ति को, असली अस्तित्व को समझना। हमारा अस्तित्व है ब्रह्म, ब्रह्म माने पर ब्रह्म, जो कि सारा सृष्टि जिनके भीतर चल रहा है वो है पर ब्रह्म, माने वो है ब्रह्म, वो हमारा असली अस्तित्व बता रहे हैं भगवान। हाँ, लेकिन हम क्या समझते हैं, ये सीमित शरीर, सीमित विचार, सीमित इच्छाएं, यही हम है सोचते हैं, है ना। तो यहाँ से जागृति लेने के लिए पहले हमें समझना है कि ये सीमित शरीर क्या है, हम नहीं। ये सीमित इच्छाएं और मन की बौछार जो है ये भी हम नहीं। तो बाकी जो बचा है वो क्या है, उसको जानना है। हमारा अस्तित्व बचा है, उसको पहचान, है ना। तो इस विषय में बताते हुए स्वामी कहते हैं कि रामायण में ऐसा उल्लेख है क्या, श्री राम और सीता मैया दोनों गए थे वनवास में और लक्ष्मण जी के साथ। और जब वनवास में थे तो वो 10 वर्ष के बारे में ज्यादा बताया नहीं जाता। 10 वर्ष के ऊपर एक आश्रम से दूसरा आश्रम पहुंच जाते थे। तो वहां पे हर एक आश्रम में जब अपना कदम रखते थे तो सभी लोग माने सत्संग की इच्छु, माने पिपासी होते थे, सत्संग के पिपासी। तो स्वामी कहते हैं तब भी माने त्रेता युग में भी जब वो श्री राम बन के आए तब भी यही डिसिप्लिन उन्होंने मेंटेन किया। माने क्या, लेडीज सेपरेट जेंट्स सेपरेट, यही डिसिप्लिन उन्होंने मेंटेन किया। तो इसीलिए श्री राम लक्ष्मण बाकी जो साधु थे जेंट्स उनके साथ एक तरफ, और सीता मैया बाकी साध्वी लोगों के साथ, आश्रमवासी लेडीज के साथ एक तरफ, माने अलग अलग सत्संग करते थे। ठीक है। तो स्वामी कहते हैं ఇప్పుడు మాత్రం కాదు అప్పుడు కూడా అంతే, माने सिर्फ अभी नहीं तब भी मैं वैसे ही था, माने यही डिसिप्लिन हमारा संस्कृति में है, वो ही लेके आए, भगवान खुद लेके आए। तो यहाँ पे माहौल ऐसा है कि अलग बैठे हैं ना, तो यहाँ चर्चा चल रही है क्या है, तो सारे लोग सीता मैया की जो सुंदरता है, सौम्यता है, उनके भीतर जो आत्मा का प्रकाश झलक रहा है, तो उसको देख के बहुत प्रभावी हैं, बहुत आकर्षित हैं माता से। तो सीता मैया से पूछते हैं आपका पति आया है यहाँ, तो आपका पति कौन है यहाँ। तो स्वामी इस विषय को भी थोड़ा हंसी मजाक बनाते हुए कहते हैं आजकल के स्त्रियों को अगर कोई पूछता है आपका पति कौन है, तो बोले अरे ओ इधर उठ के आओ, बोलेंगे तो जैसे वो उठेगा बोले ये देखो ये मेरा पति है, ये बोले। हाँ, लेकिन हमारा संस्कृति क्या है, स्वामी बहुत अच्छी तरह से इसको समझाते हुए कहते हैं कि सीता मैया जो है हमारे भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो वो बताते हैं, देखो पूछता क्वेश्चन क्या है, उनसे पूछा गया आपका पति कौन है, क्या ये आपका पति है। तो सीता मैया देखते हैं एक सेकंड के लिए, फिर बोलते हैं नीचे देखते हुए नहीं, क्योंकि वो किसी पराये पुरुष की तरफ देखते भी नहीं है। तो सिर्फ एक सेकंड के लिए देखा उन्होंने किसकी तरफ इशारा है, फिर वो अपना सिर हिलाए नहीं बोल के, माने न इति, ये नहीं। फिर दूसरा किसी को दिखाया तो एक सेकंड के लिए उन्होंने देखा, नीचे कर दिया अपना नजर, फिर से उन्होंने सिर घुमाया, न इति माने ये नहीं। तीसरा भी जो किसी और को दिखाया तो फिर से वही हुआ, न इति ये नहीं। चौथा उनको बाकी माने जो महिलाएं थे उनको समझ में आ गया कि ऐसे प्रभावशाली स्त्री का जो पुरुष है माने जो पति है वो भी बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। इन सब में से सबसे तेजवान जो पुरुष है वही होंगे। तो किसी ने सीधा उंगली दिखाया किसकी तरफ, श्री राम की तरफ। श्री राम की तरफ उन्होंने उंगली दिखाया, क्या ये तेजस्वी पुरुष जो है ये आपके पति हैं। सीता मैया ने देखा पर इस बार उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना अपने एक्शन से ना अपने मुंह से, सिर्फ उनके मुखमंडल में एक मृदु मधुर सुमधुर मंद हास था, माने जो आनंद का जो प्रतीक है एक मंद हास वो उनके मुख में मुखमंडल में आ गया। ये देखिए
तो उसको देख के सभी को समझ में आ गया, सभी लोग हर्षित हो गए कि हाँ यही है इनके पति माने श्री राम। तो ये देखिए इस अनुभव को माने समझाते हुए स्वामी कहते हैं इसका क्या तात्पर्य है। माने जब गुरु आपको सिखाते हैं, माने आपके भीतर अपने ही विषय में जागृति लेके आते हैं, तो पहले बताते हैं ये देखो शरीर आप हो क्या, नहीं। मन और बुद्धि आप हो क्या, नहीं नहीं। माने नेति नेति माने न इति, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। फिर आखिर में जब आत्म की तरफ इशारा होता है तो गुरु कहते हैं ये देखो यही तुम्हारा असली अस्तित्व है, तुम्हारा शक्ति जो है सीमित नहीं विकसित है, सर्व सृष्टि में समाया हुआ शक्ति ही तुम हो, यही तुम्हारा असली पावर है, असली अस्तित्व है। जब सदगुरु ये दर्शाते हैं हमें तब ये जागृति होती है क्या, अपने स्वरूप की। स्वरूप क्या है अपना, सच्चित आनंद। जो स्वामी ने कहा उनका स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है, सच्चित आनंद। इसीलिए जब स्वामी ने हमें ग्राम सेवा के लिए भेजा था तो स्वामी का आदेश था कि सेवा करते वक्त आप ये क्या है किसी को परोस रहे हो सेवा भाव से घर पे भी, तब भी ये कर सकते हैं। ये देखिए स्वामी का कहना था सेवा किस प्रकार हो, ये जागृति के साथ हो क्या। स्वामी ने कहा जब सेवा के लिए जाते हो और प्रसाद बांटते हो तब ओम सच्चिदानंदाय नमः इसका उच्चारण करते हुए सेवा करना, ये स्वामी का इंस्ट्रक्शन था। और उन्होंने इसका अर्थ जो है उसी दिन अपने दिव्य भाषण में डिवाइन डिस्कोर्स में उन्होंने कहा। अर्थ क्या है, स्वामी ने कहा देखो तुम्हारा स्वरूप भी सच्चिदानंद है, जो ग्रहण कर रहा है प्रसाद को उनका भी स्वरूप सच्चिदानंद ही है, असली स्वरूप जो है सच्चिदानंद है। और ये जो सेवा कार्य हो रहा है और प्रसाद जो है वो भी सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद के अलावा और कोई वस्तु है ही नहीं। इस जागृति को लेके आओ सेवा में, तभी सेवा संपूर्ण होगा, ये स्वामी का कहना था। ये सच्चिदानंद, सच्चिदानंद माने क्या, ये बहुत बात तो आपने बहुत बार सुनी होगी, हाँ, लेकिन सच्चिदानंद का मतलब आपको अगर समझना है बहुत सरल है। सत माने आपकी उपस्थिति, आप हाजिर हो ना, आप मौजूद हो, अभी आपकी जो उपस्थिति है उसी को सत बताया गया है। इसका क्या डेफिनेशन है, सत माने तीनों काल में जो परिवर्तित ना हो उसको सत बताया गया। वो आपकी जो उपस्थिति है, देखिए आप बहुत छोटे बच्चे थे तब भी आप उपस्थित थे, लेकिन शरीर इतना था, मन तो आपका था ही नहीं, आपको कुछ ख्याल नहीं है उस विषय में। थोड़ा सा बड़े हुए बाल काल में, फिर बाल काल में क्या हुआ, शरीर थोड़ा बड़ा हुआ, मन में कुछ कुछ विचार आने लगे, आपको बोध है आपके अनुभवों का, माने जब 3, 4, 5 साल के आप थे कुछ कुछ आपको बोध है उस अनुभवों का, माने आपका मन विचार जो है थोड़ा सा बढ़ गया है। हाँ, लेकिन तब भी आप वैसे उपस्थित थे। आपकी उपस्थिति में फिर थोड़ा आगे जाके आप 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड वहां तक आ गए तो और भी शरीर बढ़ गया और विचार भी बढ़ गए, आपके खुद के दृष्टिकोण आपको समझ में आते हैं, ये सब भी हुआ। कहाँ आपकी उपस्थिति ज्यों का त्यों है, लेकिन आपका शरीर और मन क्या बढ़ता जाता है, बदलता जाता है, बदलता जाता है, अभी तक देखिए और आगे भी यही होगा। अभी जैसे आप मौजूद हो, आपका शरीर क्या बढ़ गया, मन विचार भी बढ़ गया, अभी भावनाएं भी बढ़ गए, बदल गए ना, बचपन से बहुत ज्यादा शरीर बदल गया, मन और भावनाएं बदल गए, लेकिन आपकी उपस्थिति वैसा की वैसा है। क्यों, कोई पूछता है अरे भाई तुम LKG UKG और फर्स्ट स्टैंडर्ड कौन से स्कूल में किए, तो बोले मैंने ये पढ़ा, मैंने यहाँ पे पढ़ा, माने आपकी उपस्थिति कहता है कि मैं ऐसे ही उपस्थित थी कब, जब मेरा शरीर छोटा सा था, मैं ऐसे उपस्थित थी जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, मैं ऐसे उपस्थित थी जब कॉलेज में आई, अभी भी मैं ऐसे उपस्थित हूँ। माने आपका शरीर और मन और भावनाएं क्या बदलते रहते हैं, आपका उपस्थिति ज्यों का त्यों हमेशा बनाए रहता है, जो त्रिकाल में अबाध्य है, माने बाधित नहीं होता। शरीर बाधित हुआ, बाधित माने चेंज हुआ, और मन और आपके भावनाएं बाधित हुए, चेंज हुए, हाँ, लेकिन काल के साथ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, काल के साथ, टाइम के साथ अबाधित जो आपका अस्तित्व है, आपकी हाजिरी है, मौजूदगी है, इसी को बताया सत। लेकिन आपने इस पे ध्यान दिया क्या,
आपने इसके जो अनुभव का जो ये विटनेस है, जो ये देखता है अपने अनुभव, देखती है अपने अनुभव को, ये सारे अनुभवों का जो आपने तो माने ध्यान रखा जरूर, लेकिन ये अनुभव किस एक को हो रहा है उसके ऊपर आपका ध्यान गया क्या? तो उपनिषद का सार है इसको पहचानना, माने अपने आप को पहचानना, ये अस्तित्व जो बदलता नहीं है इसको पहचानना। देखिए ये है सत्य, और इस सत्य जो है इसके ऊपर अगर आपका ध्यान माने चित्त माने ध्यान, आपका ध्यान अपने आप पे आ गया और अपना पहचान हो गया, तो वो अनुभव होता है आनंद का। आपका उपस्थिति क्या है? अखंड है, खंडित नहीं है ना, हमेशा से आप उपस्थित हो, बचपन से अभी तक गैर हाजिर कभी हुए क्या, गायब हुए क्या आप कभी? हमेशा उपस्थित हो ना, तो माने सत्य है हमेशा उपस्थित। हाँ, लेकिन जब आपका ध्यान इधर एक बार भी गया क्या, इधर उधर भटक रहा है दुनिया में, हाँ, लेकिन जब आप अपने विचारों को छोड़ के, शरीर को छोड़ के ध्यान लगाते अपने आप पर, मैं हाजिर हूं तो कैसे हूं, इस विषय पे आप अगर अपने आप पे ध्यान लगाएंगे तो आपको अपने ही स्वरूप का ज्ञान होगा। और वो स्वरूप किस प्रकार आपको प्रकट है? आनंद के रूप में। आनंद के रूप में आप खुद आनंद हो और ढूंढ रहे हो आनंद हर जगह। अभी देखिए रहस्य आपके भीतर छुपा है, और उस खजाने को ढूंढते हुए आप गए बाहर हिमालय में और इस दुनिया में हर जगह जा रहे हैं, क्या ढूंढते हुए इस खजाने को? असली खजाना कहाँ है? आपके भीतर छुपा हुआ। तो उपनिषद का काम का क्या है? गुरु का काम है, ये उपनिषद का काम। गुरु ही उपनिषद है, उपनिषद ही गुरु है। उप माने जिस वस्तु के पास जाना है वही गुरु है असलियत में। उनका काम क्या है? एक राही जो अपना रास्ता भटक गया उसको दिखाना। देखो वो है जहां पे तुम्हें दूर पे दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा है? स्मोक आ रहा है ना, स्मोक। स्मोक माने वहां पे कोई फायर है, तो वो उस तरफ जाओ। तो उसके उस उंगली के आधार से, माने उंगली के आधार से देखते हुए ये यात्री क्या है? ये राही चलता है, हाँ उस तरफ वो देखता है, तो उसको स्मोक दिखाई देता है, थोड़ी देर बाद फायर भी दिखाई देता है, तो समझ में आता है कि मेरा गांव उस तरफ है, जंगल में भटक रहा है। और गुरु का काम है इशारा कर दिया, इशारे के हिसाब से माने उसके आधार से वो देखता है, समझ में आता है कहाँ है गांव, और उसकी तरफ खुद को चलना पड़ता है। देखिए गुरु उंगली पकड़ के एक पॉइंट तक लेके जाते हैं और इशारा कर देते हैं, उसके बाद खुद को चलना पड़ता है। ये क्या विषय है अभी थोड़ा आगे देखेंगे, लेकिन उपा माने ये चीज है आपका खुद का अस्तित्व जो आनंद स्वरूप है। आप ही आनंद का स्रोत हो, यू आर द वेरी सोर्स, द फॉन्ट ऑफ ब्लिस इटसेल्फ। जो जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो ना, आप खुद हो। इस चीज को जागृति लेके आना, यही उपनिषद का कार्य है। कठोपनिषद में इसीलिए उत्तिष्ठ जागृत यम, एक छोटा सा बच्चा जो नचिकेत है, ये वो राही है, उस राही का गुरु है यम। यम माने द गॉड ऑफ डेथ। यम उनको राह दिखाते हैं। इस विषय में उसको कैप्चर किया गया है कहानी के स्वरूप, इसीलिए कथा, कथा माने कहानी, उपनिषद है, इसीलिए कठोपनिषद नाम से इसको बताया गया है। और उप ये समझ में आ गया होगा अभी आपको, इसका थोड़ा सा मतलब क्या है, माने अपने खुद के स्वरूप को पहचानना, अपने भीतर जो भगवत स्वरूप है उसको जानना, उसके बारे में जागृति लेके आना अपने भीतर, ये है उप का मतलब। नी माने क्या? नीचे बैठना। नीचे क्यों बताया गया? अभी पास में बैठना तो हो गया ना, अभी नीचे क्या है इसमें? नीचे बैठे या समान बैठे, ये सारे विचार आ सकते हैं। हाँ, लेकिन नीचे, नी माने नीचे माने सिर्फ स्थान के रूप से नहीं है, सिर्फ स्थान के रूप से नहीं है। नीचे माने यहाँ बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हमें ये ज्ञान ग्रहण करने के लिए, माने अपने भीतर जागृति लेके आने के लिए भगवान के जो शब्द है उसके प्रति किस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए, इस विषय में बताता है। नी, नी माने नीचे बैठना। नीचे क्यों? रामायण में फिर से इसका उल्लेख है। रामायण जो है सारे वेदों का सार है, सारे वेदों का सार जो है रामायण है, सारे उपनिषद का सार है भगवत गीता। तो वेद का सार कैसे? रामायण वेद का सार है। भगवान कहते हैं कि चारों भाई जो थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों के चार जो है चार वेद है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण वेद।
हर वेद के बहुत सारे शाखाएं हैं, हर शाखा के अंतिम में जो आता है उसको बोलते हैं वेदांत, माने वेद के अंत में। इसीलिए वेदांत, जो वेदांत बताया गया है वही ज्ञान कांड भी बोला जाता है। ज्ञान माने क्या, बहुत सारे लोगों को अभी इस ज्ञान शब्द से ही थोड़ा माने नफरत हो गया। क्यों? ज्ञान को ऐसा दर्शाया गया। ज्ञान का क्या मतलब है? मैं नहीं जानती हूँ माने अज्ञान, मैं जान गई हूँ माने ज्ञान। ज्ञान माने जानना। जानना बुरी बात है क्या? अगर जानना नहीं चाहते तो हम कॉलेज क्यों जाते हैं, इधर समर कोर्स में क्यों आते? माने किस विषय के बारे में जानना? अपने स्वयं के बारे में जानना। खुद को जाना नहीं तो उसको क्या बोलते हैं? पागल, है ना। इस दुनिया में, इस दुनिया में जो खुद को जानता नहीं और हर जगह जाके बोलता है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, उसको क्या बोलेंगे लोग? ये पागल है, खुद को नहीं जानता है। लेकिन जो बोल रहा है पागल है, खुद को नहीं जानता है, क्या वो स्वयं को पहचानता है? ये प्रश्न है ना। तो यही विषय वहां पे है, खुद को जानना ही ज्ञान है। तो वेद के अंत में आता है, इसलिए वेदांत। वेदांत माने ज्ञान कांड। वेद के 2 या 3 भाग भी बताया जाता है, माने कर्म कांड है जो कि बताता है कि जीवन कैसे जीना है। फिर उपासना कांड है जहां पे उपासना माने भगवत कृपा कैसी पाई जाती है उसके बारे में बताया जाता है। उस इस उपासना के बारे में हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। फिर आखिर में जो आता है उसको बोलते हैं ज्ञान कांड। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये तीनों भाग है वेद में। उपनिषद के भीतर भी ये 3 भाग झलकते हैं कभी कभी, है ना। तो असलियत लेकिन उसका क्या लक्ष्य है? वो है ज्ञान कांड। ज्ञान माने स्वयं को पहचानना है, इतना सरल है, समझ लीजिए। ज्ञान माने खुद को पहचानना। खुद के पहचान के बिना अगर हम जीवन घटित करेंगे तो उस जीवन का मतलब जीवन होगा क्या? प्रश्न चिन्ह बन के रह जाएगा। आखिर में हम अपने आप से पूछेंगे जब प्राण निकलने वाला है कि हम अपने जीवन के साथ किए तो क्या किए, है ना। तो ये प्रश्न नहीं रहना चाहिए। हमारा जीवन जो है प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं होना है, एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। माने अरे वाह क्या जीवन है। इसीलिए आप सबके लिए एक संदेश है भगवान से। स्वामी हमेशा कुलवंत हॉल में प्रशांत निलय में आके जब हम सभी से छात्रों से बात करते थे तब ये कहते थे देखो ऐसा नहीं बैठना है, कैसे झुक के अपने बैकबोन को ऐसा बेंड करके नहीं बैठना, सीधा करो, माने सावधान हो जाओ। अपना रीढ़ की हड्डी बैकबोन जो है सीधा रखो। क्यों? इसमें बहुत सारे रहस्य हैं, आपको एकाग्रता बढ़ती है इससे। और आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता मिलने के लिए चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है इससे। तो इसमें बहुत सारे रहस्य है। अपने बैक को हमेशा सीधा रख के पढ़ना, जो भी कार्य आदत बना लीजिए कि जब भी आप बैठते हैं जितना हो सके सीधा बैठिए, है ना, ऐसे स्ट्रेट। तो स्वामी कहते हैं अगर आप ये यंग एज में अपने बैक को ऐसा रख के बैठेंगे ना, जैसा जैसा आपका उम्र होगा ना आप ऐसा हो जाएंगे, माने क्वेश्चन मार्क हो जाए। आपका जो शरीर है वो खुद एक क्वेश्चन मार्क की तरह हो जाएगा। माने आखिर में पूछेंगे कि जीवन किस लिए मैंने जिया, क्या किया मैंने इस बहुमूल्य जीवन के साथ। हाँ, लेकिन अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे और बैठेंगे तो आपका जीवन जो है एक्सक्लेमेशन मार्क बन जाएगा, माने अरे वाह क्या जीवन था मेरा, ये ऐसा हो जाएगा आपका जीवन। ये देखिए, तो इसी को लेते हुए उपनिषद में क्या बताया गया, आपका जीवन का कल्याण, माने इसमें सक्सेसफुल कैसे होना अपने जीवन में। सक्सेस माने पहले खुद को कैसे पहचानना, और अपना पहचान माने आपका शक्ति इतना विशाल है, सारे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति आप हो, तो ऐसा शक्ति को अपने जीवन में प्रकट करना। तो उसके सामने कौन सा प्रॉब्लम आपको बड़ा होगा? देखिए, हाँ, अपने आप को जानने के बाद आप इतना विशाल हो, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने तुच्छ है, माने उसका मायने ही नहीं है। देखिए, जीवन में आत्मज्ञान को उतारना यही सिखाता है उपनिषद। हाँ, तो लेकिन इसको ग्रहण करने के लिए कैसे? माने नीचे बैठ के ग्रहण करना है। इसका मतलब क्या है? रामायण में बताया गया है कि आखिर में जब श्री राम ने रावण का वध किया, ये समझ लीजिए, राम ने रावण का वध नहीं किया, उसके भीतर जो दुर्गुण थे उसी का वध किया। क्यों? ये बहुत प्रकाशित है उसी कहानी में, जब बताया गया है। कहानी नहीं, ये इतिहास है, माने हिस्ट्री है। ये इतिहास में बताया गया है कि जब श्री राम रावण के सामने आए तो उन्होंने प्रणाम किया। श्री राम ने, जो कि साक्षात भगवान है, उन्होंने प्रणाम किया किसको? जिसने उनकी पत्नी का हरण किया उसको।
तो सभी लोग चौंक गए, रावण भी चौंक गया। वो बोल रहा अभी आपने हार मान लिया मेरे सामने। तो राम बोलते हैं मेरा प्रणाम उस व्यक्ति है, उस दुराचारी से नहीं जिसने मेरे पत्नी को हड़प के लेके गया, लेकिन मेरा प्रणाम उससे है जो कि 64 विद्या है ना, 64 विद्या के मास्टर है। कौन? रावण मास्टर था 64 विद्या के। तो उन्होंने कहा मेरा प्रणाम विद्या के लिए है, आप वो दुराचारी के लिए नहीं। माने वहां भी उस मनुष्य के भीतर वो क्या है, अच्छा ही ढूंढ रहे थे श्री राम। रावण में भी अच्छा ही ढूंढ रहे थे और बोले 64 आर्ट्स का मास्टर जो वहां खड़ा है उसको, वो 64 कलाओं के तो मास्टर है, उसको प्रणाम कर रहा हूँ, दुराचारी को नहीं। दुराचारी को दंड देने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। और उन्होंने बखूबी वो निभाया और उस दुराचारी को, माने उसका जो दुराचारण था, वो दुर्गुण थे, उसका नाश किया, लेकिन अच्छाई का उन्होंने नाश नहीं किया। उसके भीतर जो अच्छाई था उसको उन्होंने और संवारा। कैसे? उसको प्रणाम करते हुए। यही चीज जब उन्होंने रावण का वध किया तो लक्ष्मण से राम कहते हैं, सुनिए ध्यान से, लक्ष्मण से राम कहते हैं जाके रावण से सीखो कि ये राज्यपाठ जो करना है, माने एडमिनिस्ट्रेशन, राज्यपाठ जो करना है कैसा करना है, जाके रावण से सीखो। लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, ये आप क्या कह रहे हैं, हमारा जो शत्रु है सीता मैया को हड़पने वाला ये आदमी, इससे मैं क्यों सीखूं, मैं नहीं जाऊंगा। तो राम कहता है ऐसा नहीं, इसका जो दुर्गुण है ना, इसके ये दुर्रक्त के साथ, माने बैड ब्लड के साथ बह गया बाहर सब। अभी जो मैंने इसका वध किया इसके साथ सारा दुर्गुण जो है निकल गया। अभी इसमें जो मौजूद है परम विद्वान, 64 कलाओं के विद्वान यहाँ मौजूद है, इससे जाके सीखो लक्ष्मण। तो आदेश है बड़े भैया के, इसीलिए उनको अच्छा नहीं लगता था लक्ष्मण को कि हर बार आदेश को मानना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने श्री राम को कहा अगले बार जब आप आओगे ना, मैं आदिशेष हूँ, मैं बड़ा भाई बन के आऊंगा। इसीलिए अभी हमारे जगन्नाथ मंदिर में बड़ा भाई बन के बलभद्र दाव के रूप में वहां बैठे हैं, है ना। कृष्ण छोटे भाई बन गए, क्यों? तंग आ गए थे लक्ष्मण के रूप में। आदिशेष क्यों? हर बार मानना पड़ता है इनका आदेश। तो बोले नहीं, अगले बार आएंगे ना हम ही बड़ा भाई बनेंगे। तो बन गए बलराम और भगवान श्री राम बन गए कृष्ण। ये भी रहस्य वहां छिपा है। तो लक्ष्मण गए रावण के पास और कहाँ गए, खड़े हो गए उसके सिर के पास, और रावण ने कुछ जवाब नहीं दिया। लक्ष्मण बोल रहे हैं मेरे भाई का कहना है कि मैं आपसे ये सीखूं, इसीलिए मैं खड़ा हूं। और रावण कोई रिएक्शन, अभी प्राण बचा है उनमें और कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। लेकिन फिर श्री राम आते हैं। श्री राम आके, ये ध्यान से सुनिए, भगवान श्री राम आके रावण की चरण की तरफ खड़े होके कहते हैं मेरा ये आपसे प्रार्थना है कि आप लक्ष्मण को राजपाट कैसे करना है इसका रहस्य आप समझाएं। ये राम, देखिए कितना ह्यूमिलिटी है, भगवान का कितना ह्यूमिलिटी। इसीलिए वो कहते हैं माय लाइफ इज माय मैसेज। और रावण लक्ष्मण की तरफ देखते हुए कहते हैं देखो अपने बड़े भाई से सीखो, श्री राम से सीखो, वो साक्षात भगवान है, मेरे मुक्ति के लिए आए हैं। श्री राम से सीखो कि अगर कुछ ग्रहण करना है तो सिर के ऊपर बैठ के नहीं ग्रहण किया जाता है, पैर के पास, गुरु के पैर के पास जाना पड़ता है। टीचर के भी हो, गुरु बड़ा शब्द हो गया, टीचर के भी हो, पैर के पास जाके, माने कुछ भी लेने के लिए ह्यूमिलिटी के साथ लेना पड़े, विनम्रता के साथ ग्रहण करना। इसीलिए उपनिषद में नी बताया गया, नी माने नीचे। फिर तीसरा क्या है उसमें, शद, शद माने बैठना। अभी ऊपर नी इसी में आ गया अर्थ के पास में बैठो, फिर ये शद क्यों बताया गया, माने बैठना। फिर से शद माने एक स्थिर अवस्था में बैठना, माने विचलित न होना। गुरु के समक्ष जब आप बैठते हो, माने जब स्वामी का जो बताया हुआ वचन हो, डिस्कोर्स हो, या फिर वाहिनी आप पढ़ रहे हो, या फिर स्वामी का डिस्कोर्स पढ़ रहे हो, किस प्रकार बैठना, पहले रीढ़ की हड्डी सीधा बैठ रख के पढ़ना है ना, सीधा रख के बैठना है। और जब आपने शुरू कर लिया तो आप ये प्रण ले लीजिए कि ये खत्म करने तक आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जैसे अगर आप समर कोर्स अभी कर रहे हैं तो इधर उधर हिलते डुलते नहीं सुनना, क्यों हिलते डुलते सुनोगे एकाग्रता बनेगी क्या। तो यहाँ पे जो रहस्य बताया जा रहा है, जो विशेष चीजें बताए जा रहे हैं आपके भीतर, वो समझ में आएगा क्या, कैसे आएगा। तो एकाग्रता जो है एक शिष्य के लिए बहुमूल्य है। समझ लीजिए एकाग्रता बिना कोई किसी प्रकार का ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, है ना।
आप भी सोच के देखिए, अगर आपके पढ़ाई में आपका एकाग्रता नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, तो क्या आप समझ सकते हैं जो आप पढ़ रहे हैं? इधर उधर का विचार है तो। हाँ, इसीलिए एकाग्रता माने शब्द माने एकाग्रता के साथ स्थिर होना, सब्जेक्ट पॉइंट में स्थिर हो जाना एकाग्रता के साथ, यही है शब्द। उपनिषद का ये सरल अर्थ है। हमने कहा कि उपनिषद के 3 भाग माने कर्मकांड, जीवन किस प्रकार जीना है, दूसरा उपासना किस प्रकार करना है भगवान की कृपा पाने के लिए, भगवत कृपा के साथ अपने आप को पहचानना कैसा है, यह है ज्ञान कांड। सरल है, जीवन कैसा जीना है, इस जीवन द्वारा उपासना करते हुए अपने अर्चनों को कम करना है भगवत कृपा प्राप्त करके, है ना। फिर अपने अर्चनों को कम करते हुए भगवत कृपा से और भी अपने जीवन में वृद्धि होते हुए अपने खुद का पहचान करना है, इसी में असली कल्याण छिपा है। इसीलिए तीसरा है ज्ञान कांड। तो कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। देखिए प्रैक्टिकल है ये जीवन, अपने ही जीवन के विषय है वेद। वेद माने वेद, वेद माने जानना, किसके बारे में, जीवन कैसा घटित करना, उपासना कैसा करना है अपने जीवन में भगवत कृपा के लिए, और आखिर में जो है जब कृपा मिल गई भगवान की तो उसका उपयोग किस चीज के लिए करना है, अपना जीवन सफल करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपनी खुद की शक्ति को पहचानने के लिए इसका उपयोग करना है। यही रास्ता बताया गया वेद में। कोई भी आप वेद ले लीजिए, अलग अलग वेद क्यों है, फिर यही चीज है अगर एक समान सभी में। इसीलिए क्योंकि स्वामी कहते हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, माने हर एक स्कल, मुंड माने स्कल, हेड, ये स्कल जो है, मुंडे मुंडे माने हर एक हेड में, मतिर भिन्न मन अलग अलग प्रकार से है ना, अलग अलग तरीके का मन है। तो इसीलिए हमारा भारतीय संस्कृति जो है सबको अपनाता है, सबको अपनाता है। इसीलिए अलग अलग विचार के हो, बहुत अच्छा, तुम्हारे लिए अपने हिसाब से कस्टमाइज हम बताएंगे। बताना तो यही चीज है, जीवन कैसे जीना है, उपासना करके भगवत कृपा कैसे पाना है, अपने जीवनों को अर्चनों को कम करने के लिए और अपना जीवन की वृद्धि बढ़ाने के लिए, टू प्रोग्रेस इन लाइफ कैसा करना है। और आखिर में ये प्रोग्रेस और ये ग्रेस किस लिए है, अपने आप को पहचानने के लिए। क्यों, जो इस आनंद को इस दुनिया में ढूंढता है वो कौन है, अपने आंख के ऊपर पट्टी बांध के ढूंढने वाला व्यक्ति है। क्या ढूंढ रहा है, खजाना ढूंढ रहा है। खजाना कहाँ है, खुद अपने भीतर है और ढूंढ रहा है बाहर। ये देखिए, इसीलिए प्रोसेस तो यही है ना। अभी इसको हम ध्यान से समझेंगे। ये 3 पॉइंट क्या है, पहला क्या है, जीवन कैसे जीना। तो स्वामी इस डिस्कोर्स में बहुत ही सुंदर तरीके से 1972 समर शॉर्ट्स में कहते हैं, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ इज अ गेम प्लेड। स्वामी कहते हैं ना, लाइफ इज अ गेम प्लेड। ये गेम कैसा है, भगवान कहते हैं कि ये एक फुटबॉल गेम जैसा है। और फुटबॉल गेम में क्या होता है, एक तो गोल पोस्ट होता है दोनों तरफ, है ना, फिर बाउंड्री लाइन होता है, जिसके बाहर बॉल गया तो फाउल हो जाएगा, और दोनों टीम प्लेयर्स होते हैं। तो ये जीवन के जो फुटबॉल गेम है, इसमें सिर्फ 6 प्लेयर्स है दोनों तरफ में। एक तरफ है हमारी जो भीतर में जो बुरा टेंडेंसीज है, जैसे काम, लस्ट, क्रोध, एंगर, मोह, अटैचमेंट, मद, प्राइड, मात्सर्य, एनवी, काम, क्रोध, लोभ माने ग्रीड। ये देखिए ये सारे जो गुण हैं, दुर्गुण है हमारे भीतर। राम ने क्या किया, दुर्गुण का वध किया रावण में। ये समझ लीजिए, रावण का अपमान कभी नहीं किया राम ने। ये महान है, महानता है राम का, है ना। तो यहाँ के लाइफ, गेम ऑफ लाइफ में भी यही चीज है। रामायण युद्ध चल रहा है वहां, कैसे, दोनों तरफ जो पार्टीज है क्या है, एक तरफ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, षड रिपु जो बोलते हैं हमारे, वो एक तरफ है। दूसरे तरफ कौन है, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा और पूर्णत्व। पूर्णत्व माने हमारे खुद की पहचान करना, आत्मज्ञान होना माने पूर्ण, यही पूर्णत्व है। हालांकि हमने कहा शरीर सीमित है, मन सीमित है, अपना अस्तित्व जानो जो कि विस्तार ब्रह्म है, लेकिन ये जानिए कण कण में बसा हुआ ब्रह्म जो है वो परिपूर्ण है, सीमित नहीं है। कण कण में बसा हुआ ब्रह्म जो है वो परिपूर्ण है, सीमित नहीं। इसीलिए बताया गया उपनिषद में क्या, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका क्या मतलब है, वो जो पूर्ण ब्रह्म है
उनका एक छोटा सा भाग हुआ जो है ये पूरा विस्तार बन गया, क्रिएशन बन गया। तो ये पूर्ण से कुछ निकाला गया, तो ये अपूर्ण है क्या? कुछ अपूर्णता उनमें आए? बोलते नहीं, ये भी पूर्ण है, जो निकला वो भी पूर्ण है। यही रहस्य है, इसको समझो। माने जो ब्रह्म शरीर में बसे हुए हैं, जो ब्रह्म मन में बसे हुए हैं, वो पूर्ण ही हैं। सिर्फ उस ब्रह्म को न पहचान से, मैंने आंख में पट्टी डाल के जानने से, उस ब्रह्म को इस सृष्टि में न पहचानने से, तब आके हमें सीमितता का एहसास होता है। अगर सीमितता का अनुभव होता है, उसी दृष्टिकोण से हम काम करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं सृष्टि में कोई लोप नहीं, दृष्टि को बदलो। दृष्टि माने जब ज्ञान हो उदय होता है तो दृष्टि बदलती है, तो वही सृष्टि जो आपको तंग करता हुआ आज तक दिखाई देता है, आपको माने सुमधुर आनंद का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप दिखाई देगा। एक बार किसी ने जाके स्वामी से पूछा, स्वामी हम देखते हैं सक्कूबाई, मीराबाई, ये जितने भी आपके भक्त हैं ना, वो ज्ञानी भी है, आपने उनको आत्मा ज्ञान भी दिया, लेकिन कितना कष्ट झेलते हैं अपने जीवन में। माने आप भक्ति करना और स्वरूप का ज्ञान पाना माने इतना कष्ट है क्या? यहाँ तक कि मीराबाई को पॉइजन दे दिया गया, विष दे दिया गया। यही है क्या परिणाम भक्ति का और ज्ञान का? तो स्वामी ने उनसे कहा, क्या उन भक्तों ने, माने सक्कूबाई ने, मीराबाई ने, है ना, क्या उन भक्तों ने आपसे आके कहा कि वो पीड़ित थे? आपसे कंप्लेन किया क्या कि वो पीड़ित थे, उनके भक्ति और ज्ञान के बावजूद वो पीड़ित थे, ऐसा कंप्लेन आपको दिया क्या? तो वो भक्त चौंक गए और बोले नहीं, उनके जीवन को देख के ऐसा लगता है। वो बोल रहे देखो, सृष्टि को जो सीमित रूप से देखता है उसको यही दिखता है, लेकिन मीराबाई जो थी आत्मज्ञानी थी, उनका भक्ति परिपूर्ण था। भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। भक्ति का जो पराकाष्ठा है वही ज्ञान है। माने क्या? अविभक्त होना, भगवान से पृथक नहीं, भगवान से एक होना। ये देखिए ध्यान से, ये है विभक्ति। विभक्ति माने ये भगवान ये आप, है ना, ये भगवान ये आप, ये माने गैप हो गया ना। विभक्ति, विभक्ति माने अलग है। इसीलिए आप प्रार्थना करते रहते हैं, भगवान मुझे ये करो वो करो, आपका दर्शन दो, आपका कृपा दो, ये सॉल्व करो वो, क्यों? क्योंकि पृथक है। भगवान को कोई इच्छा है क्या? कोई इच्छा नहीं, परिपूर्ण है ये। हाँ, लेकिन भक्ति का क्या मतलब है? भले ही आप उनसे कुछ पूछते रहें, लेकिन इससे इससे उनके और पास जाओ, और निकट जाओ, और निकट जाओ, और निकट जाओ, और अपने आप को जब तुम पहचानोगे, मैंने भगवान के असली स्वरूप अपने आप को पहचानोगे, तो ये आपका अवस्था होगा। कहाँ है भगवान और कहाँ हो आप? इसका नाम है भक्ति। प्रेम वाहिनी में स्वामी कहते हैं विभक्त होना भक्ति नहीं, ये एक होना ही भक्ति है। ये इसको दूसरा नाम क्या है? वियोग। वियोग माने बिछड़ना। भगवान से बिछड़ा हुआ भाव है, भाव है सिर्फ, बिछड़े नहीं, असल में भाव है। इसी भाव से सीमित भाव आ जाता है ना। तो बिछड़ा हुआ भाव है, इसको कहते हैं वियोग। अभी ये देखिए, ये हो गया क्या? एक। एक होना माने योग। तो भगवान से पृथक नहीं, एक होना, ये जीवन का लक्ष्य है। भक्ति का भी लक्ष्य एक ही है, ज्ञान का भी लक्ष्य एक ही है, योग का भी लक्ष्य यही है। ये देख लीजिए, ये रहस्य है। तो यहाँ पे चर्चा चल रही है कैसे जीवन का गेम ऑफ लाइफ। एक तरफ है षड्रिपु, दूसरे तरफ है सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा और पूर्णत्व, जो आपका असली स्वरूप है। ये गेम चल रहा है। स्वामी क्या कहते हैं, ये जो बाउंड्री लाइन है ना, दोनों तरफ, एक तरफ है धर्म विद्या और दूसरी तरफ है ब्रह्म विद्या। यही वेद का स्वरूप है। ये जीवन ही वेद है, समझ लीजिए। वेद माने कोई पुस्तक नहीं, आपके खुद के जीवन का बात है ये। एक तरफ है धर्म विद्या, माने धर्म आचरण से कैसे रहना अपनी सुरक्षा के लिए। क्यों ये बताया गया, धर्मो रक्षति रक्षितः वेद में, माने धर्म आचरण से कैसा जीना है। क्यों? धर्म का जो पालन करेगा उसका रक्षा खुद होता है अपने आप, है ना। अपने जीवन में देखिए, जहां भी आपने धर्म का उल्लंघन किया, आपको मुश्किल में ही आना पड़ा। क्यों? क्यों? धर्म का उल्लंघन करने से आपका सुरक्षा नहीं होता, धर्म का पालन करने से आपका सुरक्षा जरूर। धर्म माने क्या? जो महर्षियों ने शास्त्र के रूप में खुद मानव अनुभवों को परखते हुए, ये कोई माने दिमाग का लिखा हुआ चीज नहीं है, मानव अनुभवों को परखते हुए कर्म का सिद्धांत को समझते। कर्म का सिद्धांत क्या है? जैसा करनी वैसा भरनी, है ना।
कर्म को सिद्धांत को समझते हुए, ये भी समझते हुए, कोई भी मनुष्य को दुख नहीं चाहिए, सिर्फ सुख चाहते हैं। इन सारे विषयों को समझते हुए उन्होंने धर्म का ग्रंथ बनाया। कहने के लिए क्या, धार्मिक जो व्यवहार है, ये धार्मिक व्यवहार करने से हमारे जीवन में सुख और शांति होगी, सुरक्षा होगा। ये सुरक्षा के लिए व्यवस्था है। हाँ, स्वामी कहते हैं ये यहाँ जो जीवन का फुटबॉल चल रहा है, यहाँ अगर तुम्हारे जो दुर्गुण है माने षड्रिपु है, उन्होंने फुटबॉल को धर्म के जो लाइन है, धर्म विद्या का लाइन है, इसके उस पार कर दिया, फाउल हो जाएगा। फाउल माने आपको मुश्किल होगा, अड़चने होगी, दुख होगा। हाँ, तो फिर से आपको बॉल लेके आना पड़ेगा धर्म विद्या के भीतर। हाँ, दूसरा तरफ क्या है, आत्म विद्या या ब्रह्म विद्या, ये भी है। माने इसको कोई इग्नोर कर देगा अपने जीवन में, उसको भी बहुत सारे अड़चने होगी। और ये जीवन जन्म मरण का चक्कर है, कभी छूटेगा नहीं। बार बार कर्म करो, कर्म फल भुगतने के लिए बार बार आओ, और एलकेजी से शुरू करो। और जो मुश्किलें हैं, जो सुख समझ के तुम प्राप्त करते हो, थोड़ी देर के लिए सुख देता है, ज्यादा समय के लिए दुख देता है। क्यों सुख और दुख कॉइन के दो तरफ के जैसे, हेड एंड टेल जैसे। अगर तुम सुख देख के तुम कॉइन को लेते हो, तो उसके पीछे क्या है, दुख मौजूद, वो भी तुम्हारे पास अपने आप चल के आता है। क्यों, उसके पीछे ही है। तो अपने आप सुख के उस तरफ दूसरा स्वरूप ही है दुख। इसीलिए जब आप सुख का चयन करते हैं, तो दुख का भी चयन ऐसे ही कर रहे हैं। इसीलिए धर्म विद्या क्या है, एक हद तक आपका प्रोटेक्शन करता है ये लाइन, लेकिन दूसरा लाइन की जरूरत है, क्या है, आत्म विद्या ब्रह्म विद्या। इससे आपको पता चलेगा कि आप खुद जो है, ये सारा खेल जो चल रहा है ना, ये खेल के आप क्या हो, साक्षी मात्र हो। आप साक्षी मात्र हो, खेल आपका नहीं चल रहा है। खेल में अड़चन है, सुख दुख का चक्कर इधर चलता है, लेकिन आपको कुछ नहीं होता है। आप स्वयं आनंद, जिस आनंद के पिपासी हो ना, आप स्वयं हो, ये जानने का है ये ब्रह्म विद्या। तो ये दोनों के बीच में ये ब्रह्म विद्या जानने से जन्म मरण का गेम ऑफ लाइफ जो है वो फुलफिल होता है, माने संपूर्ण होता है। कैसे, जन्म मरण के चक्कर से छूटना ही जन्म का लक्ष्य है। स्वामी has said, which has been registered beautifully by Kasturi ji, the biographer of Swami, in his book Loving God. Man is born so that he is not born again. Man should die so that he never dies again. माने आपका जन्म का रहस्य क्या है, फिर से जन्म ना लेना। ये देखिए, यही गेम ऑफ लाइफ है आपका चल रहा है, इसको ध्यान में रखना है। हाँ, ये हो गया पहले कर्म कांड, जो कि लाइफ क्या है इस विषय में आपको समझा रहा है, और धर्म क्या है इस विषय में आपको समझा रहा है। दूसरा क्या, उपासना कांड। उपासना क्यों करते हैं, भगवान की कृपा पाने के लिए। लेकिन कृपा जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो कृपा है उसको बोलते हैं वेद कृपा। वेद कृपा माने वेद का उच्चारण करते हुए, सही ढंग से उच्चारण करते हुए, अर्थ समझते हुए अपने जीवन में उतारना और उसका अनुभव करना, उस आनंद का अनुभव करना, ये वेद कृपा बताया जाता है। लेकिन वेद पुरुष जो स्वयं है, भगवान श्री सत्य साई खुद है वेद पुरुष। इसीलिए उन्होंने सैंक्शन कर दिया अपने अथॉरिटी से कि कलयुग में इतना बनता नहीं है, तो ठीक है, अगर बनता नहीं तो ठीक है, प्रयास कीजिए इस विषय के लिए, लेकिन बनता नहीं तो ठीक है। अगर अपने जीवन में उतार के अनुभव हुआ नहीं तो भी कम से कम वेद का अर्थ जानते हुए उच्चारण करो। अगर अर्थ भी समझ में नहीं आया तो कम से कम वेद का उच्चारण क्या है, सही मायने में सही ढंग से करो, सही इंटोनेशंस के साथ। अगर ये भी नहीं बनता है तो कम से कम वेद सुनो, क्योंकि वो जो वाइब्रेशन है उसमें वही तुम्हारा कल्याण कर देगा। तो ये जो कंसेशन देते आए, सिर्फ जो अथॉरिटी है वही कंसेशन दे सकते हैं ना। जैसे अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वही बोल सकते हैं इनकम टैक्स ये घटेगा, ये टैक्स हम निकाल रहे हैं। क्यों, अथॉरिटी उनके पास है तभी निकाल सकते, नहीं तो भरना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ वेद कृपा पाने के लिए वेद पुरुष का अथॉरिटी बनता है, वही भगवान है। इसलिए उन्होंने हमें इतना छूट भी दिया है। तो कुछ ना कुछ वेद की तरफ हमारे जो कदम हम बढ़ाएंगे, उससे अनुग्रह जो हमें प्राप्त होगी, उसको बताया गया है वेद कृपा। दूसरा कृपा जो है वो है देव कृपा। देव माने भगवान का कृपा। ये देव देवता जो हैं कहाँ पे बसे हैं, ये देखिए, देव देवता को ढूंढते हुए
बहुत से लोग इधर उधर चलते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं देवी देव सारे जो हैं आपके भीतर ही मौजूद हैं। कैसे मौजूद है? इसीलिए पुरुष सूक्त में बताया गया है। क्या बताया वहां पे? पुरुष सूक्त में बताया गया, चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखात इंद्रश्चाग्निश्च प्राणात वायुरजायत। माने चंद्रमा मनसो जाता है, मन जो है चंद्र देव से प्रकट हुआ है। चक्षो सूर्यो अजायत है, जो चक्षु है हमारे देखने की जो शक्ति है वो सूरज की रोशनी से, माने सूर्य देव के कृपा से है। ये क्यों? सूरज अगर नहीं रहता, पूरी तरह मिट जाता है, क्या आप कुछ देख पाएंगे इस दुनिया में? आंख का क्या मायने रहेगा फिर? तो सूर्य देव के कृपा से है। ये देखिए प्रैक्टिकल में भी ये जुड़ता है ना। तो चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायत, माने सारी देव देवता जो है सारे यहाँ मौजूद है अपने भीतर। तो माने इनका सेवा करना, इनका पूजा करना, यही असली में उपासना है। इस उपासना का फल हमें प्राप्त होता है उनके कृपा और अनुग्रह के रूप में। कैसे? अपने मन के जो भाव है उनको शुद्ध रखना, है ना। अभी देखिए चक्षु है, देखना कैसे? सही अच्छे भाव से देखना। जितने भी वस्तु को देख रहे हैं, क्या प्रसंग को देख रहे हैं, भाव हमारा अच्छा होना चाहिए, सबका कल्याण हो, अच्छा हो, ये भावना, ये दृष्टि से देखें, कुदृष्टि से ना देखें, कोई बुरी भावनाओं से नजर ना लगाएं हम, है ना। नजर कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। सभी में भगवान बसे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए नजर हमें आगे करना चाहिए। ये ऐसे करने से हमें क्या होगा? भगवत कृपा मिलती है। और भगवान की कृपा, देव कृपा मिलने के लिए सरल उपाय है सेवा, निस्वार्थ सेवा। भगवान को सभी में पहचान करते हुए, विद्यमान है भगवान सभी के हृदय में, ये जानकर सेवा करना निस्वार्थ। माने सेवा किस लिए हो रहा है? भगवान है तो प्रेम से सेवा हो रहा है ना, कोई वापस मुझे मिलना है इस भाव से नहीं है, प्रेम से सेवा हो रहा है। तो ये निस्वार्थ भाव से प्रेम से जो सेवा हो रही है उसी को, माने उसी से किसको? बाकी जितने भी पुरुष व्यक्ति है, माने जितने भी ह्यूमैनिटी है, ऑल मैन एंड वुमेन इन द वर्ल्ड, जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमैनिटी है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, फॉर फ्लोरा एंड फौना एनिमल्स है, ये सारे जीव है, इन सारे के भीतर भगवान मौजूद है, देव मौजूद है, देवी देवता मौजूद है। तो प्लांट्स को संवारना, एनिमल्स को संवारना, ह्यूमन बीइंग्स को सर्विस करना, टू सर्व ऑल द बीइंग्स, इसी से हमें देव कृपा प्राप्त होती है ना। फिर तीसरा कृपा क्या है? गुरु कृपा। गुरु कृपा कब मिलते हैं? जब हम बहुत जन्मों से अच्छे कर्म किए हो, मैंने जैसे वेद कृपा और देव कृपा हमें प्राप्त हुई, तो बड़े सौभाग्य से सच्चे गुरु और बहुत ही सौभाग्य से भगवान खुद गुरु बन के आते हैं। तब उनका जो वचन है, मार्गदर्शन है जीवन के लिए, उसको इम्प्लिसिट ओबीडियंस देना, स्वामी के वचन को इम्प्लिसिट ओबीडियंस देना, यही है रहस्य गुरु कृपा पाने के लिए। देखिए भगवत गीता का प्रसंग है, और अर्जुन को आत्मज्ञान दिए बिना, माने स्वरूप का दर्शन दिए बिना, असली जो शक्ति का जागृति है, अर्जुन बड़ा पराक्रमी था, उन्होंने भगवान शिव के साथ, शंकर भगवान के साथ युद्ध किया उसने, और पाशुपतास्त्र भी उसको मिला, माने सामान्य व्यक्ति नहीं था। फिर भी आत्मज्ञान के बिना वो अधूरा रह गया। वो आत्मज्ञान देने के लिए भगवत गीता की जरूरत है, लेकिन वो कौन देता है आत्मज्ञान? आपके सत्य स्वरूप, हमने बोला सत्य स्वरूप, आपके सत्य स्वरूप के बारे में ज्ञान देने वाला सिर्फ एक ही है, वो है सतगुरु। सिर्फ सतगुरु है जो आपके सत्य स्वरूप के विषय में अज्ञान को, माने आपके जो जानकारी नहीं है, जो पहचान नहीं है, पहचान दिखाते हैं और स्थिर करते हैं, वो है सतगुरु। सत्य के विषय में जो अज्ञान को मिटाते हैं वो है सतगुरु। तो भगवान कृष्ण, भगवान सत्य साई, भगवान राम सारे सतगुरु है। जगत गुरु भी है, जगत कल्याण के लिए आए, लेकिन सतगुरु है किसके लिए? जो सद शिष्य हैं उनके लिए सतगुरु है। जगत गुरु सभी के लिए है, हाँ, लेकिन जो सत शिष्य है, जो अपना पहचान करने के लिए उत्सुक है, जिज्ञासु है, उसके लिए बने सतगुरु। और ऐसा एक जिज्ञासु था अर्जुन, और ज्ञान के बिना, माने आत्मज्ञान के बिना वो महाभारत का युद्ध वो कभी नहीं कर पाता। इसीलिए भगवान कृष्ण को सतगुरु बनना था, वहां रथ में बैठते हुए, सारथी बनते हुए, जो सनातन सारथी थे वो वहां पे सतगुरु रूप में बैठे थे।
हाँ, लेकिन वो अवस्था आने के पहले उनको पहले गुरु के रूप में स्वीकार करना है। क्यों? भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या रिश्ता था? साख्य भाव था। साख्य माने फ्रेंडशिप, बहुत गहरा दोस्ती था उनके बीच में, फ्रेंडशिप, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था दोनों के बीच में। तो इसीलिए उस फ्रेंडशिप से काम नहीं बनेगा। अर्जुन के पास फ्रेंडशिप भी था, डिवोशन भी था, लेकिन उन दोनों को मिलाते हुए अर्जुन को बनना था डिसाइपल। फ्रेंडशिप डिवोशन को मिलाते हुए उसको बनना था डिसाइपल, माने कृष्ण को गुरु मानना है, तभी जाके वो उपदेश दे सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने टेस्ट किया। क्या टेस्ट किया? एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन को लेके गए, कहाँ? जंगल में। जंगल में लेके गए और एक पेड़ को दिखाते हुए देखे, बोले कृष्ण ये देखो, ये पेड़ में जो बैठा है ये इट इज अ डव ना, वो डव है ना, पक्षी जो व्हाइट कलर का होता है, डव। तो अर्जुन ने कहा हाँ हाँ डव है भगवान, कृष्ण डव है। तो कृष्ण भगवान ने फिर से कहा नहीं, मेरे हिसाब से वो पीकॉक है। तो अर्जुन ने कहा हाँ पीकॉक है। फिर कृष्ण बोले अरे जो मैं बोल रहा हूँ तुम वही दोहरा रहे हो, मेरे ख्याल में ये पीकॉक नहीं है, ये क्रो है ना, कौवा है, क्रो है। तो अर्जुन ने बोला हाँ स्वामी ये क्रो है, ये कौवा है। तो कृष्ण पूछे अरे अर्जुन तुम्हारा मति भ्रष्ट हो गया क्या, दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो गया क्या? मैं बोल रहा हूँ डव तो तुम बोल रहे हाँ, मैं बोल रहा हूँ पीकॉक तो तुम बोल रहे हाँ, फिर मैंने बोला क्रो तो उसके लिए भी हाँ बोल रहे हो, तो तुम्हारे खुद के विचार नहीं दिखाई नहीं देता क्या क्या है? फिर अर्जुन ने कहा हे मेरे परम मित्र कृष्ण, आप मेरे मित्र ही नहीं हो, आप खुद भगवान हो। क्यों? अगर आप कहते हैं कि वो पीकॉक है तो वो डव को पीकॉक के रूप में परिवर्तित करने के लिए आपको एक क्षण भी नहीं लगेगा। अगर आप वो बोलते हैं कि वो एक कौवा है, क्रो है, उसको पीकॉक को कौवे के रूप में परिवर्तित करने के लिए आपको एक क्षण भी नहीं लगेगा। आप जो कहते हैं वो सत्य है, हम जो देखते हैं वो मिथ्या है, मिथ्या माने असत्य है, इसीलिए आपका वचन ही सत्य है, आप ही सर्वशक्तिमान हो, आप जो कहते हैं वही सत्य है, उसी का हम पालन करेंगे। करिष्ये वचनम तव, ये कहते हैं ना अर्जुन। तो ये जब अर्जुन कहता है माने इम्प्लिसिट ओबीडियंस भगवान का जब उन्होंने किया, तब भगवान उनके गुरु बने। माने गुरु कृपा पाना है, क्या करना है? श्री सत्य साई ने जो कि शास्त्र, वेद शास्त्र में जो बताया गया है, वही चीज को हमारे सामान्य रूप में बहुत ही सरलता के साथ, सहजता के साथ हम उस हमारे जीवन में प्रैक्टिस कैसे करें, वो बताया हमारे स्वामी ने गुरु बन के हमारे। तो उसका इम्प्लिसिट ओबीडियंस माने उन्होंने कहा तो कहा, इसका पालन करना है। तो बेसिक क्या बोलते हैं स्वामी? नॉन वेज और अल्कोहल और बाकी जो बैड हैबिट्स है, इन सब से पहले दूर रहो, सत्संग में रहो। ये तो बेसिक्स हो गया ना स्वामी का कहने का। तो गुरु का जो आदेश है, ये आदेश का पालन करने से स्वयं अपने आप अनुग्रह आपके जीवन में आएगा और सारे अड़चने जो है आपका मिटता जाएगा। क्यों? गुरु के कृपा से। तो हो गया पहले वेद कृपा, फिर देव कृपा। वेद कृपा, वेद के पाठ सुनने से, पाठन करने से, पालन करने से। देव कृपा, सेवा निस्वार्थ भाव से सभी प्राणियों का सेवा करने से। फिर गुरु कृपा, गुरु कृपा माने हमारे गुरु जो है, उस गुरु के जो शब्द है उसको प्रैक्टिकल में इम्प्लिसिट ओबीडियंस के साथ करने से गुरु कृपा। लेकिन फाइनल जो है ये है आत्म कृपा। देखिए वेद का उपासना कांड का रहस्य ये आत्म कृपा माने जब तक आप अपने आप पे कृपा नहीं करेंगे, आपको ये तीन कृपा भी नहीं मिलेगा और गुरु सतगुरु नहीं बन सकते। जो कि वेद का तीसरा भाग क्या है? उपनिषद, कर्मकांड, उपासना ज्ञान कांड। ये ज्ञान कांड में प्रवेश आपको नहीं मिलेगा। कब? गुरु को सतगुरु के रूप में, जैसे अर्जुन ने पहले गुरु स्वीकार किया कृष्ण को, लेकिन आगे जाके जो भगवत गीता है वहां पे उन्होंने सतगुरु के रूप में कृष्ण को स्वीकार किया। और कृष्ण ने पहले अर्जुन का क्या कथन है, देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। पहले अर्जुन बोलते हैं करिष्ये वचनम तव, आप जो बोलते हैं आप सर्वशक्तिमान आप हो, लेकिन कृष्ण ने भगवत गीता द्वारा क्या दिखाया अर्जुन को कि ये सर्वशक्तिमान सिर्फ मैं नहीं, तुम भी वही हो, माने तुम्हारा स्वरूप है ये आत्म ब्रह्म, तो सर्वशक्तिमान स्वरूप है, तुम्हारा स्वरूप है, ये दिखाया अर्जुन को। इसलिए उन्होंने क्या कहा? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च
माम माने वो कृष्ण अपने शरीर के बारे में नहीं बता रहे, आत्म तत्व के रूप में जो कृष्ण बसे हैं, वो बोले इस पे ध्यान दो, माने मेरे पे, माने मेरा स्वभाव और स्वरूप और तुम्हारा जो सत स्वरूप है दोनों एक ही है, इस पे ध्यान देते हुए कर्म करो बोले, युद्ध करो बोले। शांत रहने माने गुफा में बैठने के लिए नहीं था आदेश, युद्ध च माने युद्ध से बड़ा कर्म कार्य क्या हो सकता है, माने प्रकट कार्य जो है युद्ध में कितना एकाग्रता और परिश्रम होता है, उससे ज्यादा परिश्रम किस कार्य में होता है। तो कृष्ण बोलते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, माने युद्ध करो लेकिन मेरे पे ध्यान देते हुए। ये कैसा होगा, ये रहस्य सिर्फ सदगुरु आपको दिखा सकते हैं इस विषय में। कब दिखाएंगे, जब आपने ये दृढ़ संकल्प ले लिया कि प्रभु हे गुरु, हे सतगुरु, मेरा कल्याण हो, ये मेरी प्रार्थना है। अभी आपसे ये बता रहा हूं, अभी प्रार्थना कर लीजिए, देरी नहीं करना। क्या, हे सतगुरु, मेरा कल्याण मैं चाहती हूँ, मुझे जीवन का रहस्य जानना है, उपासना का रहस्य जानना है, सबसे ज्यादा क्या है, अपने जीवन का कल्याण माने आत्म का रहस्य जानना है। अपने पहचान जानने से ही मेरा सही मायने में मेरा क्या है, कल्याण होगा। इस कल्याण को चाहना और उसके लिए स्टेप्स लेना, सिर्फ चाहने से तो कुछ होता नहीं, आपको पता है जीवन में क्या है, आप कुछ चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए स्टेप्स भी लेना पड़ता है ना। उसी प्रकार आप अपना कल्याण चाहें और उसके लिए स्टेप्स लेंगे, तब अनुग्रह जाके आपको पूर्णत्व देगा। सतगुरु अपना कृपा आप पे जरूर बरसाएंगे। हाँ, लेकिन क्या है, आप स्टेप्स लिए इसीलिए आप वेद कृपा करते हैं, आप स्टेप्स लिए इसीलिए सेवा करते हैं अपने कल्याण के लिए ना, दूसरे के कल्याण के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए सेवा करते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से। और आपने स्टेप्स लिए इसीलिए आप स्वामी के बताए हुए मार्गदर्शन पे चलते हैं। आपका ही तो स्वयं के ऊपर कृपा है ना कि ये तीन भी कृपा आपको मिला है, क्योंकि आपने स्टेप्स लिया इसलिए अनुग्रह प्राप्त हुआ। हाँ, आप ही अगर स्टेप्स लेंगे तो उपासना कांड से वेद के ज्ञान कांड की तरफ आप अग्रसर हो जाएंगे, माने सतगुरु के कृपा से। उपनिषद जो है पुस्तक नहीं है, इसीलिए पुस्तक क्या है, एक प्रकार का आत्मज्ञान अगर ना हो तो पुस्तक क्या है, जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु है ना। हाँ, लेकिन पुस्तक में जो जड़ वस्तु में जड़ लिखा है, वहां जड़ तत्व, इंक भी तो जड़ है, उससे लिखा हुआ है, तो वो जड़ता आपको जागृत कैसे करेगा, वो खुद जगा हुआ नहीं, सोया हुआ है। इसीलिए प्राचीन काल से जो परंपरा है, उपनिषद जो है लिखा नहीं जाता था, जो जागृत सतगुरु है उनके नी माने समक्ष में ह्यूमिलिटी के साथ नीचे बैठ के साक्षात अनुभव कर लेना, यही उपनिषद का रहस्य है। इसीलिए जब आप उपनिषद पढ़ते भी हैं, ये प्रार्थना के साथ कीजिए कि सतगुरु भगवान स्वामी, आप मेरे हृदय के भीतर जो हो, आपके समक्ष में बैठकर ये पढ़ रही हूँ, ताकि आप मेरे भीतर जागृति लेके आए। ये प्रार्थना के साथ आपको पढ़ना है, क्योंकि जड़ वस्तु से जागृति नहीं मिलेगी, शुद्ध चैतन्य से जागृति मिलती है। वो शुद्ध चैतन्य भगवान आपके भीतर आपके अस्तित्व के रूप में मौजूद है, बिल्कुल पास में है। इसीलिए स्वामी हमेशा कहते हैं, आई एम मोर क्लोजर टू यू देन यू आर टू योरसेल्फ। ये देखिए, इसका मतलब ये है, आई एम मोर क्लोजर टू यू देन यू आर टू योरसेल्फ, माने आपका असली पहचान आपको है नहीं, मैं आपके अस्तित्व के रूप में मैं खुद स्वयं बैठा हूं, आपके पास बैठा हूं, मैं आपका अस्तित्व जो है वही मेरा अंश भी है। ये कह रहे हैं भगवान, आई एम मोर क्लोजर टू यू देन यू आर टू योरसेल्फ। इतने पास में है भगवान हमारे। तो अभी समय का लिहाज रखते हुए हमें इस प्रसंग को विश्रांति देना पड़ेगा, लेकिन मैं आशा रखता हूं कि इसमें जितने भी प्रोत्साहन और इंस्पिरेशनल जो बात भगवान ने हमें दर्शाया है, इससे प्रेरित होते हुए आप अपने आत्मबल को पहचाने और अपने आत्मबल के साथ अपना उद्धार करें, अपने समाज का उद्धार करें, परिवार का उद्धार करें, पूरे देश का उद्धार करें और पूरे देश का कल्याण करें। कैसे? अपने आप का जो शक्ति है, अपना जो बर्ताव है, प्रवर्तन है, इसको शुद्ध बनाकर, इसको शुद्ध, भगवान कहते हैं एक बार छात्रों से, आई डोंट वांट यू टू गो एंड चेंज द वर्ल्ड। किसी ने बोला, स्वामी प्लीज टेल अस, आपने जो हमें सिखाया इसके साथ हम जाके पूरे दुनिया को कैसे बदल दें। स्वामी ने कहा, देखो
पूरी दुनिया को बदलने का ठेका तुमने नहीं ले रखा है, वो तुम्हारे हाथ में है नहीं, वो अपनी प्रकृति के हिसाब से जाएगा। वो मेरा काम है, मैं देख लूंगा उसको। तुम्हारा काम क्या है? मेरे द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया है तुम्हें, स्वामी कह रहे हैं, मेरे द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया है तुम्हें, उसको तुम बखूबी निभाओ और एक वंडरफुल एग्जाम्पल के रूप में, एक वंडरफुल एग्जाम्पल के रूप में दुनिया को प्रस्तुत करो कि भगवत कृपा प्रेम स्वरूप माने है क्या, सेवा स्वरूप माने है क्या, ये दर्शाओ एक एग्जाम्पल। आपके प्रभाव में माने आपके उपस्थिति में बाकी लोगों का परिवर्तन अपने आप होगा। आपको ये भाव लेके नहीं जाना है कि किसी और को परिवर्तित करना है, ये लेके नहीं जाना है। किसी ने, एक महान ऋषि जो हमारे संस्कृति में अभी पास के काल में ही आए थे, उनका नाम है रमन महर्षि, और उनसे किसी ने पूछा कि हाउ डू वी ट्रीट अदर्स इन आवर लाइफ, हाउ डू वी ट्रीट अदर्स इन आवर लाइफ, और उनका जवाब था, जो कि भारतीय संस्कृति और उपनिषद का सार है। रमन महर्षि ने एक शब्द में उन्होंने बताया, उन्होंने कहा, देयर आर नो अदर्स। हाउ डू वी ट्रीट अदर्स प्रश्न था, उनका जवाब था, देयर आर नो अदर्स। तुमसे पृथक अलग है ही नहीं, सभी तुम्हारे ही भाग है। यही जानना है, ये पहचान लेते हुए जानना है, किसी को सुधारना नहीं है, अपने आप को पहचानना है। पहचानना ऐसा कि सभी व्यापक रूप से सभी मेरे ही भाग है, मेरे ही अंग है, इसका पहचान करना है। मेरा अगर शब्द आपको थोड़ा कड़वा लगे तो यहाँ पहचानना है, सभी भगवत स्वरूप के भगवान के अंग है। इसको सम्मिलित करते हुए सभी भगवान के ही अंग है, इसलिए हम सब एक ही परिवार, सारा विश्व दैव कुटुंब, सिर्फ वसुदैव कुटुंबकम नहीं, वसुधा माने सिर्फ पृथ्वी, विश्व दैव कुटुंबकम माने सारा सृष्टि जो है एक कुटुंब है। इस भाव से अपने जीवन को व्यतीत करना, व्यापकता के साथ, प्रेम के साथ, सेवा जो प्रेम का ही कार्य स्वरूप है उसके साथ व्यतीत करना, यही लक्ष्य हमारे जीवन का, यही उपनिषद का सार है। इन्हीं वचनों के साथ हम इस प्रसंग का विश्रांति करते हैं, और शाम को जो आपके मन में प्रश्न हो विश्रांति करते हैं, उस Om Shri Sai Ram. Thank you, brother, for your inspiring and insightful words. Such words of wisdom can only emit from a heart that has spring of devotion to the Lord. Brother reminded us that we have to undertake the transformative journey of being a human by birth. जय Sai Ram. Sai Ram sister, please continue. Thank you, brother, for your inspiring and insightful words. Such words of wisdom can only emit from a heart that has spring of devotion to the Lord. Brother reminded us that we have to undertake the transformative journey of being a human and borrowing and sharing the wisdom imparted by spiritually enlightened being that has traversed our Punya Bhumi. Brother literally defined us. What is Upanishad? Upar, past, niche, shat, beto. How do we sit near to God, absorbing His divinity and insight and realize our own self? Upanishads lead us to Atma Jnana while letting us kill our evil thoughts. So that we do not drift along this path, we have the watch words given by Swami. Watch your words, action, thoughts,
character, and heart. And so that we continue it to be, I remember the words of Bhagavan. What next? What more? And what else? Thank you so much, brother, for your august presence. We also thank all the observers, attendees, and IT team for their active participation and constant support and encouragement throughout the session. Last but not least, our heartfelt grateful to Bhagavan for accompanying us throughout the session and showering his choicest blessing on us to make the session a huge success. Before we end, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସୂଚନାଟେ ଅଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ଯୁବ ସଂଯୋଜିକା ଭଉଣୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶତପଥୀ ଅପାଙ୍କର ଶଶୁରଙ୍କର କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସାଇରାମ, we should pray for the departed soul of the father-in-law of our sister Shri Vijayalakshmi Appa. Sairam, 1 minute silence prayer for that. Sairam. Sairam. Sairam, as we have come to the end of an enlightened session today, I'm sure our sisters have assimilated the divine message of Bhagwan and will practice it in their life. Sairam, with this we come to the end of this beautiful session. We pray Bhagavan to kindly bless us with his divine bhajan, and we offer this morning session at the Divine Lotus Feet. Sairam. सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 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 सत्यं ब्रह्म ज्ञानं अनन्तं सत्यं Oh
शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।